We have समास में समास में we have this विशेषण the one, that one, the kamma dharaya, that samas. Okay, so when you doing this jhana paivo, this is dhyan rupi deepak, but normally it is the visheshan has to be in the first word, right? When you're using this kamma dharaya samas, it can be in the second one also. कैन बी ना, आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई रूल है कि आगे ही रहेगा. Yeah, but it's आपको संधि में अपने को कुछ डाउट थे, वो क्लैरिफाई हो गए आपको लास्ट क्लास में? संधि में नहीं, I don't know. That also not done. या मैम हो गए. एक बार प्रार्थना कर लेते हैं before Yeah. we begin. नमो अरिहंतानम नमो सिद्धान नमो आयरियान नमो वज्रायानम नमो लोए सवसाहुन ऐसो पंचनमोकारो सव पावपनासनं मंगलानं च सवेसिं पढमं हवै मंगलम् पढमं हवै मंगलम्. Yes, Meenu. Thank you, Meenu. Meenu, you will take 1 hour. You will take first hour or you'll take the second hour? I'll join later, ma'am. You'll join later? Okay, yes, I'll tell you the agenda for today's class according to my plan. We can do Karak, we can do Arhat Vachan, and we can start the Nibandh book. Paper 1, the Nibandh book I would like to start today, so that 15 days you have time and you can go through that book. What do you people say? Are you all game for it? Ma'am, which Nibandh book? I sent this Prakrit Sahitya Ka Itihas to all of you by post. Yeah, ma'am. You all got the post now? Please, did you open it? Yes, ma'am. No, the book says it delivered in Bombay, so it'll take time to come to the Okay. Yeah. How long will it take? How long will it take, Alpaji? I think it'll take 1 week, ma'am. Okay. So all the others have got the book? Can I just check? Ma'am, I have got it. Who has not got it? Ma'am, me, because I got it delivered in Jaipur. So what shall we do? Okay, then we'll start after a week. Till then, you please get the book. Okay? Yeah. Then I'll Okay, wait. ma'am. Thank you. I'll wait for this paper then. Okay, Meenu? Ji, ma'am. Okay. So, and those who have got the book, give it a reading, and you please watch the special lectures that I delivered in a few places. Based on that, you can start reading the book and start making your notes, start making your observations, everything. We can't teach the whole book. You will have to write 5 essays from that book. You can write in Hindi or in English. You can ask for me. You can ask for the lecture in Hindi English mix. Those who have problem with Hindi, we can't talk in Gujarati. We'll talk in Hindi or English, or even Tamil we can talk. Okay. So Marwadi also I can talk. कहीं समझी गया? सब समझ गया कहीं मैं कहीं बोल रही हूँ? चलो रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दिया कहीं? Yes, ma'am. अगर तो राखी रो त्योहार, पर्यूषण रो त्योहार, त्योहार माते त्योहार, घरी सफाई, दिवाली. हाँ, चातुर्मास में मारा सारा जावने टाइम नहीं है. क्या बोलते हैं अल्पा जी? मजा आ गया. में बिजी है मैम. हाँ? Studying में busy है, ma'am.
सब स्टडीज में बिजी है। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा लगता है ना, देखो मातृभाषा में बात करते हैं तो एक स्माइल आ जाती है। चलो चलो। मैम आपका डिप्लोमा का एग्जाम कभी रहता है? नेक्स्ट जून में रहेगा। जून में रहेगा। जून में आपके पास 1 साल में अपना जून जुलाई निकल गया हाँ वो तो है ना, अब अगस्त आ गया है, तो हम लोग फटाफट करेंगे। भले एक जन एग्जाम लिखे, 2 जन लिखे, है ना, एक जन भी एग्जाम लिखेगा, एग्जाम चलेगा। फिर आप लोगों को डबल फीस पे करके जूनियर्स के साथ ज्वाइन कर लेना। क्यों मैम ऐसे 4,000 बोल रहे हो? तभी आप लोग आपके 4,000 की वैल्यू चुकाओगे आप लोग, है ना, इसलिए। नहीं तो डबल फीस लेके आपको छोटी वाली क्लास में डी प्रमोट करके वहां पे लेंगे आपको। मैं नहीं डी प्रमोट करने वाली, आप ही खुद को वापस एक ही क्लास में 2-2 बार बैठेंगे आप लोग। नहीं मैम, आपके होते हुए नहीं ऐसा होएगा। वेरी गुड रीटा, कीप द स्पिरिट। सबको संभाल के रखना। 12 लोग, 12 के 12 लोग बराबर है, 12 के 12 पास होंगे। लिखना। भगवान के तो 11, ठीक है, भगवान के 11 घंटे थे, मेरे तो 12 स्टूडेंट है। भगवान से भी ज्यादा आप लोग मैम आपके है, मेरे नहीं है। मैम 12 मत बोलिए, 13 आई एम आल्सो इंक्लूडेड मैम इन योर स्टूडेंट कैटेगरी। बट आप तो एग्जाम लिखने वाले नहीं हो ना, डिग्री लेने वाले नहीं हो, सर्टिफिकेट लेने वाले नहीं हो। ओके, मीनू मैम का रिवीजन हो रहा है पूरा, चलो। इसलिए मीनू मैम सर्टिफिकेट कोर्स में ज्यादा बोलते हैं, डिप्लोमा में थोड़ा साइलेंटली रहते हैं, बट वो लेंगे, क्लास लेंगे आपकी, ऐसी मुझे आशा है। चलिए, अभी मैं कारक लेसन, मीनू आप कराओगे, मैं कराऊं कारक लेसन? आप एक बार कर कराओगे? मैम, ताकि बाद में हम रिवीजन कर लेंगे साथ। अच्छा ठीक है, आपको ये पूरी बुक थरो करवाना आपका काम है इनको, ठीक है। और वो ग्रामर बुक भी अपन संख्यावाची शब्द इनको पक्का करवाना आपका काम है। फिर उसके रूप कैसे चलते वो उसके सेंटेंस ट्रांसलेशन में आगे बता दूंगी आपको। चलिए, कारक लेसन निकाल। समास में किसी को कोई डाउट? अभी अभी पूछा था आपने कि कोई समास Yes. है वो कर्मधारय में भी आ सकता है और किस में आ सकता है, अव्ययी द्विगु, है ना, दोनों में आ सकता है वो। आपको थोड़ा सा गौर से देखना पड़ेगा, गौर से देखना पड़ेगा। कर्मधारय भी विशेषण विशेष्य का ही वो फॉर्म है ना। द्विगु कर्मधारय दोनों ही तत्पुरुष समास के भेद है। उसमें विभक्ति भी दिख सकती है, विशेषण विशेष्य भी दिख सकता है, किसी एक को भी पॉइंट हुआ दिख सकता है। आपको क्या दिखता है उसके हिसाब से आपको लिखना, ठीक है। Ma'am, sorry, one question. The Visheshan can be in first or second place, it doesn't matter. यस यस Any- यस। yes, sir. मैं लाल घड़ा बोलूं, घड़ा लाल बोलूं, Okay. Okay. है ना। Thank you. सुंदर लड़की, लड़की सुंदर, इट मीन्स द सेम, आगे पीछे क्रम चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट जनरली विशेषण विशेष्य के आगे लगाया जाता है। लेकिन आपने और हमने वो प्रार्थना की थी ना, झाय ही पंचवी गुरवे, वो गुरु कैसे है, तो ऐसे 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 है। तो विशेष्य गुरु, विशेषण ऐसे है ना, जिन्होंने कर्मों का नाश किया, मंगल रूप है, चौसरण रूप है, अनुपम सुख रूप वगैरह वगैरह, है ना। तो इट कैन कम एनीवे। बस आपको आइडेंटिफाई करने की कला सीखना है बस, ठीक है। चलूं मैं आगे। और कोई डाउट किसी का? देखो, 2 सूरत में लोगों को डाउट होता है। एक तो बहुत पढ़ते हैं उनको डाउट आता है, एक कुछ नहीं पढ़कर आते उनको कोई डाउट ही नहीं आता, डाउट आता है। तो मैं आपको किस कैटेगरी में लूं? जो बहुत पढ़ते हैं उनके सब डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, उनको कोई डाउट नहीं है। और कोई पढ़ता ही नहीं है, उनको कोई डाउट्स ही नहीं है। तो आपको मैं कौन सी कैटेगरी, बस पढ़ लिया, आपको सब आता है, चलो मैं तो इसी कैटेगरी में आप सबको रखती हूँ। हाँ, कौन है जो नियमित रिवीजन करता है, बोलो मुझे। रीटा जी, अल्पा जी, श्वेता। थोड़ा बहुत तो करती हूँ मैम, थोड़ा बहुत Yeah. होता है, बहुत Ma'am. एकदम नहीं हो रहा है। अच्छा, कब स्पीड पकड़ेगी गाड़ी? श्रीबाला नहीं हाँ, है, मैम। श्रीबाला नहीं नहीं है, रेनू? हूँ मैम, हाँ, जय जिनेंद्र श्रीबाला। मैम। तो आप अपना आईफोन क्यों लिखते हो, सिर्फ श्रीबाला लिखा करो। वो मालूम नहीं, आप क्या- ऑटोमेटिक आ जाता मैम, मुझे ही नहीं मालूम पड़ता किसका आप आता है। आप अपने नाम के ऊपर क्लिक करो हाँ, अच्छा। और
पार्टिसिपेंट लिस्ट में जाओ, अपने नाम हाँ के ऊपर क्लिक करो, हाँ करी ना तो मैम। वो बोलेगा रीनेम, हाँ रीनेम, रीनेम हाँ पे क्लिक। हाँ, अब जाके वहां से आईफोन को कट कर। हाँ ठीक है मैम, कर दी। बस हो गया, श्री बाला आ गई, आईफोन चला गया। Yes, Renu lost her mother-in-law. We offer our condolences. Both Shanti sir and Renu were very good students in the Department of Jainology, and 2 years in Parmagam. I've helped them. Yes, Sucheta ji, Kinjal, आप लोगों का रिविजन चल रहा है क्या? Yes, Where is ma'am. Yes. Soren today? Where is Soren today? Soren, 1, 2, 3, हाँ 4, मैम, 5. Soren and जय जय। सेजल भी नहीं है आज. He हाँ, left, 9 ma'am. लोग He ही had हैं, to. 3 लोग He's absent है. traveling. 3 Sorry, लोग he's absent traveling. है. Please tell Soren to call me. Please tell Soren to call me, okay? Not related to Prakrit work. He expressed his desire to study MA Genealogy, so I just have to check with him. We have got very good number of applications, 28. Why don't you all join MA Genealogy? और वहाँ पे 2 साल आपको पूरा 28 पेपर्स. देखो आपकी क्लास में रेनू, श्रीबाला, रतन, ये लोग सब MA Genealogy किए हुए हैं, है ना? ये लोग सब MA Genealogy किए हुए हैं. मैम नेक्स्ट ईयर ठीक है, नेक्स्ट ईयर ऑनलाइन ही होगा नहीं होगा मुझे नहीं मालूम. ऑफलाइन तो के लिए है, आपको बुलाना. लेकिन बहुत प्राकृत वो सभी बहुत मिक्स हो जाएगा, टाइम नहीं रहता है इतना. ठीक है, आपको कोई फोर्स नहीं कर रही हूँ, मैं तो खाली मोटिवेट कर रही हूँ बस. नहीं, आई आल्सो वांट टू डू. मैं किसी को कोई भी काम के लिए फोर्स नहीं करती. नहीं, वी विल डू इट एक वन बाय वन. मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी का एमए किया था, तो एक्चुअली मुझे उसका पोर्शन और इसका पोर्शन अगर कुछ डिफरेंट है तो देखना था, तो फिर ज्वाइन करना था इसके आप लिए. मुझे एक व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं आपको सब डिटेल्स भेज दूंगी, फिर आप डिसाइड ओके. करो. ओके मैम. देखो जहाँ सारे यूनिवर्सिटीज की और बाहर पढ़ाई खत्म होती है ना, वहाँ हमारी शुरू होती है. ओके. मीनू थोड़ा सा अपने डिपार्टमेंट के बारे में, श्रीबाला, रतन, आप इनको बताओगे किंजल को, हाउ वी ट्रीट एवरीथिंग. Meenu, Shribala, Ratan, Renu, how our department is unique and how the syllabus is unique. कौन बोलेगा? Yes, ma'am. Actually क्या है, अपने में we start right from the basics, and ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी एक व्यू पॉइंट को या किसी एक धारा को पकड़ के बात की जाती है. सारे एंगल से सभी संप्रदायों की बात, हर we do text from each, from the Shwetambar tradition, from the Digambar tradition, प्योर आत्मा की बात होती है. एंड सब्जेक्ट्स भी अगर आप देखोगे ना, तो फर्स्ट सेमेस्टर में वी स्टार्ट राइट फ्रॉम द बेसिक्स, और फिर अपन आगम की पढ़ाई में अपन जाते हैं. तो ओवरऑल कवरेज ऐसे होता है कि आप हिस्ट्री भी इसमें पढ़ लेते हो, जो कर्मा फिलोसफी है वो भी पढ़ लेते हो, उत्तराध्ययन, दशवेकालिक, समय सार, प्रवचन सार जैसे ग्रंथ की भी आपकी पढ़ाई हो जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years. एंड आचारम सूत्र, मूलाचार, रत्नकरण, श्रावकाचार. यस. So lot of textual study we do, and we cover all branches of Jain philosophy, whether it is logic, योग, sadhana, metaphysics. आपको metaphysics में दिगंबर का, श्वेतांबर का दोनों बताएंगे. Ethics में दिगंबर, श्वेतांबर दोनों बताएंगे. What are the common and what are the differences? सब deep में, detail में चलता है. ये ट्रीटमेंट कोई नहीं करता है. आपने मुंबई यूनिवर्सिटी से MA जेनोलॉजी नहीं किया होगा, आपने MA फिलोसफी. हाँ, मैं जैन सब्जेक्ट्स लिए. हाँ, तो we have only 1 paper of Indian philosophy and 27 papers of Jain philosophy. So तो very मैम extensive treatment. ये 4 सेमेस्टर का ही कोर्स है. Yes, 4 semester है. So you have done Indian philosophy, do MA and then do PhD. So it's an added advantage, but then it is not complete, because I know students from Mumbai University and they say this, that आपका जो treatment है of Jain philosophy is very extensive. तो मैम आपको मैं मैसेज करूंगी, आप मुझे उसका जरा. Where do you live, Kinjal? मुंबई. Mumbai, okay. ठीक है, classes will be online, exams offline. ओके. हाँ, ठीक है मैम. ठीक है, पढ़ाई शुरू करते हैं.
प्लीज स्पॉटलाइट कर दीजिएगा, होस्ट बना दीजिएगा मनीषा जी। आप लोग टीचर को होस्ट बनाते नहीं है, स्पॉटलाइट करते नहीं है, करते क्या है मुझे समझ में आता नहीं है। ठीक है, चलो। अभी मीनू, मैंने नोट किया, अभी मीनू मैम क्लास में आए थे, उन्होंने पूछा आप सब कैसे हैं। आप लोगों ने किसी ने जवाब नहीं दिया और सीधा अपना क्वेश्चन पूछा। उन्होंने कुछ पूछा था आपको, आपको भी वापस पूछना चाहिए आप कैसे हैं। एक व्यवहार नहीं होता है क्या? चलो पूछो सब एक दूसरे को, पूछो सब एक दूसरे को। अभी क्लास में होते तो आज तेरा टिफिन में क्या आया, मेरा टिफिन में ये आया, मेरे घर में ये हुआ, वो सब जय व्यवहार जिनेन्द्र होता है मैम, कि आपके नहीं? साथ है क्या मैम? आपके हाँ, साथ अभी है देखो, वस्तु तभी। अभी विनय टपकता है, देखो अभी विनय टपकता है। जय जिनेन्द्र, जय प्रणाम जिनेन्द्र मैम। मैम, साता में Sorry about- कुछ साता पूछते हैं। है ना? सब एक दूसरे Sorry. की भी साथ पूछो, एक दूसरे का भी व्यवहार सबको साता है। सब जय पूछो जिनेन्द्र। एक सब दूसरे साता से। आप सब में, साता में हो? सभी मीनू को मैम जय साता जिनेन्द्र। में, मीनू गुरु मैम कृपा। साता में, प्रिया किंजल जी, मैम this आप भी is the साता में। best, किंजल जी, ये आपका लाइव ये प्रूफ हो गया कि इट्स नॉट जस्ट जैना स्टडीज दैट वी डू। वैसे तो मैम की हर क्लास में नेचुरोपैथी का इनपुट, लाइफ वैल्यूज हो गया, प्राकृत का गया, इट्स लाइक एन ऑलराउंड। तो ये जो क्या बोलते हैं ना, एक लाइफ डेवलपमेंट स्किल्स वाली क्लास है। तो आप 2 साल एमए करोगे तो यू कैन इमेजिन कि वेयर योर लाइफ इज गोइंग टू go. So it's Yes, an yes. overall development of, it's not just about studies. वो studies एक बहुत छोटा सा term है compared to the overall development of your life that we will Okay. get to see with the ma'am around. ओके मैम, मैंने, मेरी सिस्टर है सर्टिफिकेट कोर्स में, उसको पुश किया था तो वो प्राकृत की क्लास ज्वाइन किए हैं। सेजल करके नाम है उसका, सेजल छेड़ा। तो उसको मैंने प्राकृत के लिए तो कर लिया था कन्विंस। तो शी इज आल्सो डूइंग दिस कोर्स आफ्टर माय रिकमेंडेशन, तो उसको भी She's बहुत happy? पसंद आया। She's happy? या शी इज वेरी हैप्पी, दैट इज व्हाट शी इज लाइक, वेरी हैप्पी कि नहीं मुझे कुछ अच्छा सीखने मिला। तो मैंने उसको रेकमेंड किया था तो उसने तुरंत ज्वाइन कर लिया है। See, since you have company, both of you can together join MA, you know. नो, शी इज See, ऑलरेडी स्टार्टेड हर PhD आई थिंक। मैंने ब्रेक ले लिया था 2 साल बीच में, बट शी इज बीन सिलेक्टेड फॉर द PhD इन बॉम्बे, तो शी इज डूइंग दैट राइट नाउ। Okay. वो Yeah. PhD के साथ डबल MA कर सकते हैं। आई विल आस्क हर, मैं उसको पूछ लूंगी क्या। Because whatever हाँ. she is going to learn from us, she'll put it in her thesis. या आई विल आस्क हर व्हाटएवर इट इज। मैं Yeah. उसको मिलूंगी अभी तो उससे बात कर लूंगी। So we have jodis of husband, wife, mother and son, and brother, sister, mother-in-law, daughter-in-law. All these kind of jodis also do their padhai with us, you know. मैम Yeah, PhD, सॉरी हाँ, बोलो रीटा। नहीं कंप्लीट कर देने दो। नहीं, मैं उससे बात करके मैम से जरा डिटेल ले लूंगी, फिर मैम से वापस फिर बात करूंगी। Yeah. And please do it quickly because 30th is last date. Lines are closed. Now I've got Oh. 8 to 9 inquiries more. अच्छा, So उन सब के लिए मैं रजिस्ट्रार को कल लेटर लिख के देने वाली हूँ कि आप इन लोगों के लिए लाइन खोलो, और 1 दिन के लिए लाइन खुलेगी, उस दिन आपको एडमिशन, बस that is the last. After that I'm not going to try for anybody ओके for this year. And only this year I'm offering online. Next year से online भी classes नहीं होगी for new admissions. भले 2 आओ 4 आओ, ऑफलाइन ही होगा। ओके मैम, मैं बात Okay. करके। So just decide because डेट 3 महीना लाइन खुली थी, अब क्लोज हो गई। मई, जून, जुलाई फुल 3 months लाइन्स वर ओपन। तब तो लोग आए नहीं। एक दिन 6 लोगों की इंक्वायरी एक साथ, फिर एक हस्बैंड अपने वाइफ के लिए इंक्वायरी कर रहे हैं, फिर और 2 जन इंक्वायरी कर रहे हैं। तो करना पड़ेगा, चलो उनके लिए अलग से वापस चप्पल घिसनी पड़ेगी, है ना, मेहनत करनी पड़ेगी। इतनी एनर्जी है हमारे पास, नहीं खर्च करना एनर्जी, इसलिए चलो 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 आ जाओ फटाफट। मीनू आई टेक टिल 3:10। आफ्टर दैट आप इनको संधि समास जो भी प्रवचन सार रिविजन कराना, ठीक है। आप लोगों के कोई भी डाउट से रिविजन है वो मीनू मैम कराएंगे। चलिए अभी कारक देखते हैं। हाँ बोलो रीटा, रीटा क्या बोल रही है? हाँ मैम पूछिए, PhD करना है तो पहले MA करना है ना? हाँ, और वो भी हम पूरा इंग्लिश में कराएंगे। हाँ, फिर PhD होता है। यस,
वो भी आपके प्रपोजल में दम होना चाहिए, पीएचडी प्रपोजल में दम होना चाहिए। आप अच्छा। कोई अपठित पांडुलिपि लेके पीएचडी कर सकते हैं, ओ, कोई पांडुलिपि लेकर के प्राकृत और जेनोलॉजी को मिक्स करके पीएचडी कर सकते, ठीक है ना। चलो चलो, अभी सबसे पहले तो कारक किसे कहते हैं, कारक किसे कहते हैं, कौन बताएगा? ये हमने कारक की परिभाषा पहले ही पढ़ ली थी। जैसे समझ लीजिए मैं आपको बोलती हूँ राम राम रावण राजा घर का पर से, ये एक वाक्य है क्या? राम रावण राजा घर पर कर को से, एक वाक्य है क्या? नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको बोलती हूँ राम रावण मारा, तो क्या मीनिंग निकालेंगे आप? राम रावण मारा। तो आप रामायण को मत लीजिए, या फिर आप लीजिए सीता गीता मारी, तो आप क्या मीनिंग लेंगे? या रमेश सुरेश मारा, क्या सीता ने मीनिंग गीता लेंगे? को मारे, सीता ने हाँ, गीता को मारी, सीता ने गीता को मारा। मारा और गीता, हाँ। कितने 4 मीनिंग होंगे देखो, सीता ने गीता को मारा, गीता को या मारा, गीता ने सीता को गीता को मारा, मारा। या सीता और गीता को किसी और ने मारा। मारा, या इन दोनों ने मिलकर किसी को मारा। मारा। तो ये जो वाक्य में जो मीनिंग देते हैं ना, उसको कारक बोलते है ना। तो अब मैं ने लगाऊंगी, को लगाऊंगी कि सीता ने गीता को मारा, और अगर मैं ने और को की जगह बदल दूं तो सीता को गीता ने मारा, तो मीनिंग ही बदल जाता है, मीनिंग ही बदल जाता है ना। तो इसलिए सार्थक रूप से अपनी बात कहने के लिए संज्ञा के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं उनको कारक चिन्ह कहते हैं, ठीक है। उनको क्या कहते हैं? कारक चिन्ह लगते हैं, वो प्रत्यय होते हैं, परिवर्तन के लिए उनमें प्रत्यय लगाते हैं, सफिक्स बोल सकते हैं ना। जैसे देव में ओ लगा दिया तो देवो, तो वो बन गया देव ने, और अगर देवम किया तो वो हो गया देव को। समझ में आ रहा है ना। तो ये जो प्रत्यय हम सफिक्स हम लगाते हैं ना, वो विभक्ति चिन्ह है प्राकृत के। वो जैसे हिंदी में हम ने को से अलग लिखते हैं, प्राकृत में ने को से अलग नहीं लिखते, वो शब्द में ही ओ एण एणम डबल सु आदि जो लग जाते हैं, ठीक है। अभी आप लोग वो ब्लू बुक निकालिए, आपके पास और एक ब्लू बुक दी हुई है ना, वो निकालो जरा, वो निकाल लो जरा। कौन सी? प्रौढ़ प्राकृत रचना सौरभ, लगे हाथ में वो भी आपको बता देती हूँ। प्रौढ़ प्राकृत रचना सौरभ, ये ब्लू बुक का निकालिए, फर्स्ट पेज निकालिए, फर्स्ट पेज निकालिए। उसको आपको थोड़ा सा रट्टा मारना है। देखो संज्ञा, ये फर्स्ट जो विभक्तियां दी हुई है ना, प्रथमा द्वितीय, मिला आपको पेज नंबर 1? ब्लू बुक निकाल ली सब लोगों ने? हाँ। अब यस मैम। देखो यहाँ पर प्रथमा द्वितीय तृतीय दिया हुआ है ना। अब एक वचन के प्रत्यय, बहुवचन के प्रत्यय। अभी देखो अपन एक प्रथमा एक वचन के लिए क्या एब्रीवेशन यूज करते हैं? मुझे प्रथमा एक वचन बोलना है तो मैं ग्रामर में क्या बोलूंगी? 1/1। ये तो हमने लगाया ना 1/1, लेकिन जो संस्कृत के पंडित होते थे ना, वो लोग 1/1 नहीं बोलते, वो बोलेंगे सी। तो प्रथमा एक वचन इज कॉल्ड सी, प्रथमा बहुवचन इज कॉल्ड जस, सी जस। इसी प्रकार द्वितीय एक वचन का नाम क्या है? और द्वितीय बहुवचन का नाम है शस। इसी प्रकार तृतीय का नाम है टा, बहुवचन का है बिस, चतुर्थी का है ङे ङे ङे, नॉट डे, ङे। कोई नाक से बोलता है तो ड कैसे बोलेगा, ङ कैसे बोलेगा? ङे, और इधर आएगा भ्यस। फिर गसी, ngसी है वो, ngसी भ्यस। फिर ngस, डस नहीं बोलना, ngस आम, और डी नहीं बोलना, ङी।
नी। आप लोग है ना यूट्यूब पे जाके सी जस अम शस डालो, उसका प्रोनाउंसिएशन कोई वीडियो देख लो आप, संस्कृत का सी जस अम शस हाउ टू प्रोनाउंस करके कोई वीडियो आप अच्छे से देख लो। तो नी क्या है, तो सप्तमी एक वचन, और सुप वो है सप्तमी बहुवचन। अब मैं आपको सी जस बोलूंगी तो आपको बोलना प्रथमा एक वचन प्रथमा बहुवचन। अब मैं आपको पूछती हूँ व्हाट इज चतुर्थी बहुवचन, जल्दी से आप बोलो। चतुर्थी बहुवचन क्या बोलना पड़ेगा मुझे? Yes. ने ने Yes. ने Yes. बहुवचन का ही लेना, बहुवचन का ही Yes. लेना। अच्छा Yes. यस। तो अभी आप इसको याद करो, सी जस अम शस ताभिस ङेभ्यस ङसीभ्यस ङस आम नी सुप, घी को सुप, घी को लास्ट में क्या है, घी को सुप यानी पी ले। तो ठीक है, तो सी का मतलब क्या है, 1/1 प्रथमा एक वचन। सो ये क्या है, ये प्रत्यय है ना। तो वहां पर इस रूप में ये प्रत्यय बता रहे हैं, तो संकेत है, ये तो खाली प्रत्यय संकेत है, प्रत्यय के ये संकेत वर्ड्स है। ठीक है, तो अब ये सारा आप याद कर लेंगे तो फिर मैं आपको ये बुक चालू करवाऊंगी। उसके पहले हम ये वाली बुक खत्म करेंगे, उसके बाद ये ब्लू वाली बुक चालू करवाऊंगी। ठीक है ना। तो अभी आज हमारा ये कौन सा लेसन चल रहा है देखो तो जरा। अभी हमारे और 3-4 लेसन है इसमें, 4 वीक में ये बुक खत्म हो जाएगी। हमने संधि कर लिया, समास कर लिया, अभी हम कारक आज करेंगे, फिर तद्धित, स्त्री प्रत्यय, अव्यय, इन तीनों को मैं एक क्लास में लेने की कोशिश करूं। तो ये अगस्त पूरा ये बुक खत्म हो जाएगी। तो सितंबर में ये वाली ब्लू बुक है, इसमें संख्यावाची शब्द है, वो आप रिवीजन करना, फिर मैं सूत्र वाले ले लूंगी और निबंध भी चालू कर, और गद्य पद्य चलता रहेगा। जब हमारा गद्य पद्य खत्म होगा हम पांडुलिपि दिवाली के बाद चालू कर देंगे। तो इस तरीके से वी शुड ट्राई टू फिनिश अवर पोर्शंस बाय मार्च, देन यू विल हैव टाइम फॉर रिविजन अप्रैल मई जून, इस तरीके से अप्रैल में रिविजन अपने को मिल जाए। समझ में आ गया बंधुजन? हाँ, मैं किसी के लिए रुक नहीं सकती, इसलिए आप फटाफट डाउट्स पूछो, फटाफट गाड़ी चलाओ और आगे चलो। तो कारक का डेफिनेशन मैंने आपको दिया, अब मैं आपको बताती हूँ इस लेसन को पढ़ना कैसे है। तो पहले ये प्रत्यय चिन्ह आपने याद, ये कर्ता ने कर्म को, तो संस्कृत में क्या वो मैंने आपको बता दिया, वो भी याद कर लो। अब प्रथमा में ने को से, ये सब आपको पहले से पढ़ा हुआ है, उनका एग्जाम्पल राइट में दिया हुआ है, ये तो क्लियर है आपको। तो संज्ञा के इसमें जो है, अब प्रथमा कहाँ का, अब देखो नेक्स्ट पेज पर आइए, प्रणाम यहाँ पर क्या है, हाँ अब ये पेज आप लोग पढ़ लेना। प्रणाम क्रिया को करने वाले, इसको समझाया गया, छात्र ने गुरु को प्रणाम किया, तो प्रणाम क्रिया का कर्ता कौन है, छात्र, उसका ऑब्जेक्ट कौन है, तो गुरु। तो ऐसे करके वो पेज समझाया गया, 8 कारक को समझाया गया। ठीक है, तो धोना क्रिया का संप्रदान पानी है, पानी से धोते हैं, तो इसलिए वहां पर करण कारक है। फिर जीना क्रिया सुख के लिए है, इसलिए वहां पर संप्रदान कारक है। ये सेंटेंसेस आप लोग पढ़ना, पुत्र सुख के लिए जीता है, तो क्यों वहां पर संप्रदान है, तो इस प्रकार। गिरना क्रिया पेड़ से हुई है, अलग हुआ है, इसलिए वहां पर अपादान है। तो फिर राज्य का शासन प्रजा को पालता है, तो शासन किसका है, राज्य का, तो वह संबंध है। तो इस प्रकार 8 कारक को यहाँ पर समझाया गया। तो विभक्ति बोले तो प्रथमा द्वितीय तृतीया बोलना, और सप्तमी विभक्ति संबोधन कारक। ठीक है, हाँ समझ में आया। षष्ठी विभक्ति के लिए संबंध कारक। अगर हम प्रत्ययों को मिलाकर लिखेंगे प्रथमा से लेकर के, तो इस प्रकार हमें षट कारक यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, अब कहा जा सकता है कि व्याकरण का सैद्धांतिक पक्ष कारक है, परंतु उसका जो विभक्ति है ना, वो उसका व्यवहारिक पक्ष है। जैसे छात्र ने गुरु को प्रणाम किया, तो सिद्धांत क्या है, सिद्धांत क्या है कि करता है, और विभक्ति क्या है, तो प्रथमा विभक्ति। समझ में आया? व्यवहार, व्यवहार में हमने कर्ता को प्रथमा में रखा है।
ठीक है ना। तो इस प्रकार सैद्धांतिक पक्ष और व्यवहारिक पक्ष से तो विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। तो प्राकृत में 6 कारक है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। संबोधन और संबंध का क्रिया से डायरेक्टली कुछ लेना देना नहीं होता। जैसे राज्य शासन प्रजा को पालता है, तो सेंटेंस कंप्लीट है ना। शासन इज द कर्ता, प्रजा इज द कर्म, पालना इज द क्रिया। तो राज्य का और पालने से कोई संबंध नहीं। समझ में आया क्या? उसका कोई संबंध क्रिया से नहीं है, इसलिए वहां पर ये संबंध कारक यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं दिया, संबंध को कारक नहीं माना है। और न षष्ठी विभक्ति के रूप को पृथक स्थान दिया गया। जो चतुर्थी का है वही षष्ठी बोरो कर लेता है, इसलिए चतुर्थ्या षष्ठी है ना। जो षष्ठी के रूप में चतुर्थी के समान ही सब होता है। 6 कारकों का बोध कराने के लिए विभक्तियां हैं। विभक्तियां ने प्रथमा, द्वितीय, तृतीया। इतना होने पर भी कारक और विभक्ति में भेद है। कर्ता में हमेशा प्रथमा लगेगा, कर्म में द्वितीय विभक्ति नहीं होती है, परंतु कर्ता में तृतीया और कर्म में प्रथमा विभक्ति भी तो होती है ना। कर्म वाच्य में कर्ता तृतीया में आ गया, कर्म प्रथमा में चला गया। सो ऐसा कोई रूल नहीं है कि कर्ता है तो ही शुड बी ओनली इन प्रथमा, कर्म है तो ही शुड बी ओनली इन द्वितीया। ये आपने कर्म वाच्य में देख लिया कि कर्ता तृतीया में आ गया। तो कहाँ कहाँ पर कारक में प्रथमा में कौन से कहाँ कहाँ केसेस में प्रथमा लेना, कारक कर्ता कारक लेना, तो उसके रूल्स आएंगे। इस प्रकार 8 कारक के रूल्स आपको समझना है, तो आपको गड़बड़ नहीं होगी कि इसमें मैं कौन सी विभक्ति लूं। आपका जो सर्टिफिकेट कोर्स में पढ़ा वो और स्ट्रॉन्ग आपका बनता है। समझ में आ गई बात सबको? इंपॉर्टेंट है कि नहीं पढ़ना? चलो अब देख लेते हैं। समझ में आ गया? हाँ, अब देखो यहाँ पर इन्होंने एक वाक्य दिया है, रावणो रामेण हवो, यानी राम के द्वारा रावण मारा गया। अब इसमें कर्ता कौन है? कर्ता कौन है? राम। लेकिन हमने उसको प्रथमा में नहीं लेके तृतीया में लिया। ये तो क्लियर है ना आपको, हमने बहुत अच्छे से सर्टिफिकेट कोर्स में आपको बता दिया। तो इस प्रकार कर्ता नॉट नेसेसरी ही विल बी इन वेयर ऑल ही कैन बी। कहाँ कहाँ प्रथमा विभक्ति लग सकती है, कहाँ कहाँ कर्ता कारक लेना, तो यहाँ पर वो रूल्स के रूप में हमको कौन पढ़ा रहे हैं? हमको कमलचंद जी सोगानी पढ़ा। उन्होंने ये बुक बहुत दूर, आज टुडे इज 90+। his wife has helped him to write all the books, and she was literally bedridden for many years, and uncle उनकी सेवा करते थे और वो बैठ करके उनके एडिटिंग वर्क करते थे। कोई भी गाथा को मिलाना, शब्द से मिलाना, सूत्र को मिलाना, प्रूफ रीडिंग का काम वो अंकल को हेल्प करते। सो आई हैव बीन टू जयपुर। जो भी जयपुर रहते हैं जरूर अंकल को विजिट करना, बहुत खुश होंगे वो आप सब से मिलकर के। ठीक है बंधुजन? ओके, चल तो चलिए अब प्रथमा विभक्ति एक एक रूल आप लोग पढ़ेंगे फटाफट। 1 2 3 4 रूल्स दिए हुए हैं और 3 में 3 सब पॉइंट्स है। जल्दी जल्दी पढ़िए आपको। मैम ये ऊपर की फर्स्ट लाइन है वो समझ में थोड़ा नहीं आया। अर्थात कहा जा सकता है कि व्याकरण का सैद्धांतिक पक्ष, हाँ वो नहीं, 3 लाइन समझ में आई जरा। देखो छात्र, पहला वाक्य लीजिए, आपके पेज नंबर 25 पर एक वाक्य दिए हुए। छात्र ने गुरु को प्रणाम किया। तो 2 चीजें ना आपके पास, विभक्ति और कारक। तो इसमें आप बताइए कि छात्र कौन है? छात्र कौन है? छात्र प्रथम करता है। वो प्रणाम करने की क्रिया कौन कर रहा है? छात्र कर रहा है। वो करता है। ही इज द डूयर। हाँ, तो डूयर को जो बता रहा है वो सिद्धांत, कारक को जो बताए वो सैद्धांतिक पक्ष। लेकिन उसका जो हम यूज करते हैं ना, व्यवहार चलाते हैं, उसको प्रथमा में रखते हैं, उसको द्वितीया में रखते हैं, इसको तृतीया, वो व्यवहारिक पक्ष। तो विभक्ति बोलना व्यवहारिक पक्ष है, कारक बोलना सैद्धांतिक पक्ष। कारक निकालना, समझना
oh, he is the doer of this kriya. This is the karma. समझ में आया? मैम मैम हाँ, संप्रेषण बोले क्या मैम? संप्रेषण संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन। अच्छा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के लिए विभक्तियों का प्रयोग। અને દ્યોતક द्योतक यानी इंडिकेटर, इंडिकेट करने वाला, इंडिकेट करता है। आप लोग पूरा, मैं पूरा नहीं पढ़ा सकती हूँ, आपको मैंने बता दिया ये बुक कैसे पढ़नी है, ठीक है? ठीक है मैम। चलूं आगे, થેન્ક્સ समय મેમ हो जाएगा। हाँ चलिए, अब एक एक रूल एक एक जन पढ़िए, जल्दी जल्दी एक एक रूल एक एक जन पढ़ करके समझाइए। पढ़िए, आप लोग 1 मिनट पढ़िए। अच्छा ठीक है मैम, मैं पढ़ती हूँ, स्टार्ट करती हूँ। जिस व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उसे वाक्य का कर्ता कहते हैं और वह प्रथमा विभक्ति में रखा जाता है। जैसे नरिंदो परमेश्वरम पनमयी, राजा परमेश्वर को प्रणाम करता है। इस वाक्य में पनमयी क्रिया को करने वाला नरिंद करता है और प्रथमा विभक्ति में है। इस तरह से कर्तुवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। क्लियर है ना? जो करता है, कर्तृवाच्य है, वो प्रथमा में होता है। अब मुझे कहना है कि जिनवाणी बहुत सुंदर है, तो जिस व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है ना, तो वो भी कर्ता में आएगा, वो भी प्रथमा है। सुंदर होने का काम कौन कर रही है? जिनवाणी। भले वहां पे कोई कर्ता ने वगैरह नहीं मिलेगा आपको, जिनवाणी ने सुंदर होने का काम किया, ऐसा नहीं है। जिसके बारे में हम डिस्क्राइब करते हैं वो सब प्रथमा में हो। जैसे इंडिया एक विशाल देश है, तो मैं किसके बारे, विशाल देश होने का काम कौन कर रहा है? इंडिया, है ना? तो वो है, वो कर रहा है, इसलिए वो करता। समझ में आया? यस मैम। ठीक है। हाँ, अब कर्मवाच्य में कर्ता का क्या होगा? कर्ता तृतीया में चला जाएगा। कर्मवाच्य में कर्ता, वो कर्म में, कर्तृवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। प्रथमा विभक्ति कर्मवाच्य में जो कर्म है ना, वो प्रथमा में आ जाता। प्रथमा में कौन कौन आ जाता है? जैसे अभी आपने यहाँ पर देखा कि गुरु, छात्र के द्वारा गुरु प्रणाम किया गया, तो मेन सेंटेंस है गुरु प्रणाम किया गया। गुरु के बारे में मैं बता रही हूँ, तो मैं उसके विषय के बारे में बता रही हूँ ना, इसलिए गुरु प्रथमा में आएगा। तो किसके द्वारा? तो छात्र के द्वारा। तो के द्वारा आ गया, इसलिए करण कारक आ गया, इसलिए तृतीया विभक्ति आ गई। तो गुरु के बारे, गुरु वॉज बाउड डाउन, गुरु वॉज वेनरेटेड, इसलिए उसको प्रथमा में डाला। उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है कर्मवाच्य में। कर्म इंपॉर्टेंट है, कर्ता इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए वो इंपॉर्टेंट हो गया, इसलिए वो प्रथमा में है। समझ में आया अब क्यों हम कर्म में प्रथमा करते हैं? एकदम फिक्स हो जाएगा, आपको कभी भूलोगे ही नहीं, ये रूल से चलोगे, ठीक है? अब देखो वाक्य दिया हुआ है, माता, हाँ मैंने ये ले लिया, आपको ही आगे थर्ड वाला रूल पढ़ करके रेडी रहना है। माता के द्वारा कथा सुनी जाती है, तो मेन बात है कथा सुनी जा रही है। अब वो हो सकता है माता के द्वारा सुनी जा रही है, माताओं के द्वारा सुनी जा रही है, पिता, वो इंपॉर्टेंट नहीं। कथा इज बीइंग लिसन टू, वो एक कथा का डिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट, इसलिए वो प्रथमा में है, वो कर्म प्रथमा में इंपॉर्टेंट हो गया। अब नेक्स्ट आप लोग पढ़िए, थर्ड बड़ा रूल है, 1 2 3 मैं पूरा पढ़ूं? पढ़ के बताइए। मैं पढ़िए पढ़ूं? पढ़िए, कोई दिक्कत। हाँ, प्रथमा विभक्ति का उपयोग शब्द का अर्थ और लिंग दोनों बतलाने के लिए किया जाता है। अर्थात जब किसी शब्द का कोई अर्थ निकालना हो तो उस शब्द में प्रथमा विभक्ति लगाते हैं। नरिंद शब्द का उच्चारण निरर्थक होगा, किंतु यदि नरिंदो कहे तो राजा उस शब्द का अर्थ होगा। यहाँ नरिंदो शब्द से ज्ञात होता है कि यह शब्द पुल्लिंग है और इसका अर्थ राजा है। इसी प्रकार तड्डो, तड्डी, तड्डम शब्द प्रथमा विभक्ति में रखे गए हैं। तड्डो पुल्लिंग, तड्डी स्त्रीलिंग, तड्डम नपुंसकलिंग शब्दों के लिंग है और किनारा इनका अर्थ है। इसलिए संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में अर्थ निकालने के लिए
प्रथमा विभक्ति के प्रत्यय जोड़े जाते हैं। सो पुल्लिंग, सा स्त्रीलिंग, तम नपुंसकलिंग। मनोहरो पुल्लिंग, मनोहरा स्त्रीलिंग, मनोहरम नपुंसकलिंग। कुछ समझ में आया या मैं समझाऊं? थोड़ा नहीं, नहीं, थोड़ा समझ गया मैं। हाँ, समझ आपने जो समझ गया। पहले सीखा था वही। है ना। तो हाँ। खाली नरिंद बोलने से कोई अर्थ नहीं निकलता, वो मूल शब्द है। हाँ, मूल जब शब्द। नरिंदो बोलेंगे तो राजा भी मिला और इसका मीनिंग भी मिला और ये करता है वो भी मिला और ये पुल्लिंग है वो भी पता चल। पता चलता है। तो ये तट वर्ड है। तट का मतलब होता है किनारा, समुद्र तट, नदी का तट। तो अगर हम उसको तड़ो कहेंगे तो मनोहरो तड़ो, तट बहुत मनोहर है, तो पुल्लिंग। मनोहर विशेषण हो गया, तड़ो पुल्लिंग संज्ञा हो गया, और वो कर्ता हो गया, प्रथमा विभक्ति हो गया। मनोहर होने का काम कौन कर रहा है? तट, इसलिए वो करता है, कर्ता में ही ये आएगा। अगर तटी, कोई नदी की तटी है, तटी यानी तट, तो वहां पर आएगा मनोहरा तड़ा, तो वो स्त्रीलिंग है ये भी पता चल गया तड़ा से, और वो तटी प्रथमा ना, में है ये भी पता चल गया। तटी आएगा ना। हाँ तड़ी, तो अर्थ भी पता चलता है, लिंग भी पता चलता है, और वो कौन सा कारक है, कौन सी विभक्ति से, हमें कारक और विभक्ति से हमें अर्थ पता चल जाता। जैसे नरिंदो बोलते ही राजा कोई करता है, ऐसा अर्थ होता है। इसी प्रकार तड़म नपुंसकलिंग है तो मनोहरम तड़म। सो मनोहरो तड़ो, सा मनोहरा तड़ा, तम मनोहरम तड़म। तो कर्ता में सिर्फ मूल शब्द से पता नहीं चलता है, उसका विभक्ति के साथ उसका प्रयोग करना पड़ना, नरिंदो, नरिंदा, इस प्रकार। ठीक है। नेक्स्ट 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 रूल पढ़िए। वस्तु का पॉइंट 2। परिमाण, वस्तु का परिमाण या नाप बताने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे सेरो पुल्लिंग, गोहुमो एक सेर गेहूं। यहाँ प्रथमा विभक्ति से सेर का नाप विदित होता है ना। तो दिस इज एक सेर गेहूं, कितना गेहूं? एक सेर। तो गेहूं प्रथमा है, करता है, तो सेरो भी प्रथमा है। तो किसी भी चीज का, जैसे मैं आपको बोलती हूँ 14 रज्जू लोक, तो लोक है वो, तो लोक इज द कर्ता, होने का काम वो कर रहा है, वो लोक कैसा है? 14 रज्जू, तो वो भी प्रथमा विभक्ति में। नेक्स्ट। संख्या का ज्ञान कराने के लिए भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे इक्को एक, तिणी तीन आदि। जैसे अपन चत्तारी मंगलम, 4 मंगल है, तो चत्तारी भी मंगलम 1 by 1 है, तो ये भी चत्तारी भी 1 by 1 या 1 by 2 है, जो भी है ना। 4 मंगल है ना, बहुवचन है, इसलिए चत्तारी। चौ होता तो एक वचन, चत्तारी बहुवचन। तो आप लोग एक काम करिए, ब्लू बुक में जाइए, आपको एक काम दे देती हूँ, लगे हाथ, पेज नंबर 157, 57 नहीं, आप लोग पढ़ चुके हैं। 153 पर आइए जल्दी से, 153 पर आइए। ब्लू बुक, व्हेन आई से ब्लू बुक आई मीन दिस प्रॉड, एडवांस, प्राकृत, इतना मुझे नहीं बोलना है, ठीक है। तो 153 में 1 2 3 4 रोज बोलना, 1 to 100 याद हो जाएगा। ठीक है, रोज एक बार रीडिंग बोल देना। बच्चों से कैसे अपन 1 2 3 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो बच्चे बन जाइए आप लोग सब, तो जल्दी 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 सब ले लेंगे। अरे ये क्या बच्चों वाली बात है? अरे हाँ बच्चों वाली बात ही, बच्चे बन करके ले लेंगे तो जल्दी आपका हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये वो तो आपका बड़ा ईगो मत खड़ा कर लेना, पढ़ने का तरीका आपको बता रही हूँ। ठीक है, 157 तक वो है। अब जो संख्यावाची शब्द है ना, तो एक पुल्लिंग, पेज नंबर 158 ऊपर लिख दीजिए, देव की तरह। फिर एक नपुंसकलिंग, वो कमल की तरह। फिर एक स्त्रीलिंग, ससा की तरह। हो गया। अब एक वर्ड ही पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में है। फिर हम आपको आगे बताएंगे, अभी मैं नहीं बताऊंगी, नहीं तो यहाँ पर दिया हुआ है, वहां पर देख ही लीजिए आप। कहाँ देखेंगे, कहाँ देखेंगे, आगे आएगा। ये जो है ना, दो वर्ड है, पेज नंबर 161 पर, दो
बहुवचन के रूप में दो है ना, इट इंडिकेट्स प्लूरल। ठीक है, तो दो को बहुवचन में दो वे दुन्नी वेन्नी, दो वे दुन्नी विन्नी। फिर उसका बहुवचन दो, फिर सेम प्रथमा द्वितीय सेम, तृतीया में ही हिम हिम, चतुर्थी में आण आणम लगाया था, इधर हम चौनम दोन्नम पंचन्नम, चतुर्थी षष्ठी, और पंचमी में सेम लाइक देव, दुत्तो दो दुओ दो, और सप्तमी में सुसुम। इस प्रकार दो का रूप, फिर तीन का रूप, फिर चार का रूप, फिर पांच का रूप, यहाँ तक। अब आगे यहाँ पर देखो। मैम इसमें लिंग नहीं है तो फिर 2 3 उसमें नहीं, सबके लिए सेम, सबके लिए सेम। अब आगे देखो, आगे थोड़ा ये आएगा, पेज नंबर 162 में लास्ट लाइन देखिए, 6 से लेकर 18 तक के संख्यावाची शब्दों के रूप 5 की तरह चलेंगे। तो आपको पहले वो 1 to 100 याद होना चाहिए, तो फिर उनको चलाने का सिखाएंगे। इसको अंडरलाइन कर लो। फिर राइट में देखिए 163। तो चलो अभी आपको 18 तक चलाना आना चाहिए, बस इतना होमवर्क है। 1 to 100 बोलना आना चाहिए और 1 to 18 चलाना आना चाहिए। प्रैक्टिस करो, एक बड़ी लॉन्ग बुक ले लो, लिखो, प्रैक्टिस करो, ओरली करो, लिख के करो, कर लो। कौन लोग नहीं करेगा, हाथ ऊपर करो। कौन लोग नहीं करेंगे, हाथ ऊपर करो, करना ही पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया होमवर्क आज के लिए? मीनू ग्रुप में डाल देना, 1 to 100 रिविजन, 1 to 18 उसका रूप चलाने का। रूप चलाने का मतलब क्या है? उसका डिक्लेंशन करने का। जी मैम। फिर आएगा 19 से लेके 58 तक, पेज नंबर 163। 19 से लेके 58 तक का शब्द ह्रस्व अकारांत होते हुए भी स्त्रीलिंग के समान एक वचन बहुवचन दोनों में आएगा। अब क्यों आएगा, इसका लॉजिक मेरे पास नहीं। यहाँ तो बहुवचन नहीं है और यहाँ पे बहुवचन आ गया, क्योंकि हमें लिटरेचर में वैसा ही मिलता है प्रयोग। ठीक है, तो यहाँ पर 19 से लेके 58 का रूप आपको चलाना है ससा की तरह, 60 और 20 आदि ईकारांत शब्द का चलाना है 60 की तरह, 60 की तरह। तो वो आपको बीसा का रूप भी दिया हुआ है 19 से लेके 58 तक, और फिर 60 का रूप भी दिया हुआ है, तीनों लिंग में, तीनों लिंग में दिया। तो आगे आगे हम करेंगे, अभी के लिए आप 18 पर कॉन्सेंट्रेट कर। इस तरीके से ये सब पढ़ने के बाद है ना, ये 1 to लेके 1 लाख करोड़ 100 तक का रूप चलाना आपको आ जाएगा। फिर हम इनका प्रयोग करेंगे। देखो अभ्यास के वाक्य 176 में, अभ्यास के वाक्य, एक मंत्री आता है, तो एक वर्ड क्या लिखोगे? एगो मंत्री आगच्छई। समझ में आया? वे 4 कर्मों को नष्ट करते हैं, वह 3 लोक में प्रिय है, 50वीं गुफा में मुनि ध्यान करते हैं। पहले तो 1 2 3, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वो भी सिखाएंगे। अंडरस्टूड डियर? अंडरस्टूड डियर? मैम Yes, मतलब आ गया मैम। ये हाँ? वीसा है, पर वीसा याद जो रखना है, मुश्किल लग रहा है, जैसे लग रहा है। करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। डिप्लोमा ऐसे कोई इजीली नहीं मिलने वाली चीज। वो करेक्ट मैम। वीसा मीन्स मैं जब गई थी ना पढ़ने के लिए 20 साल पहले श्री महावीर जी में जयपुर के पास, तो वो मुझे सी जस अम सच सिखा रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। फिर पता नहीं करते 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 अचानक पल्ले पड़ गया। रोना आ रहा था, मैं कहाँ देखूं, इधर देखूं उधर देखूं, क्या करूं। आप लोगों को मैंने एकदम सिंप्लीफाई करके पढ़ाया, वहां पे वो एडवांस लेवल में पढ़ा रहे थे, मेरे को धीरे धीरे मैं कैच कर रही थी। इजी नहीं है, मैं आपको बोल रही हूँ, इजी नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो इजी हो जाएगा। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इजी नहीं होगा, नहीं आएगी ये चीज, आपको हरगिज नहीं आएगी। आप ही स्वयं को पढ़ाने वाले, मैं नहीं। मैम समझ में मनीषा आ जी, गया? मैम एक डाउट है।
वे 4 कर्मों को नष्ट करते हैं, तो ये 4 को एक वचन में लेना है कि बहुवचन में लेना है? आपके पास 4 एक वचन में है ही नहीं, अच्छा, तो 4 आपको क्यों का बहुवचन द्वितीय विभक्ति लेना है, क्योंकि ठीक है। कर्म द्वितीय बहुवचन है, इसलिए 4 को भी द्वितीय बहुवचन लोगे। समझ में आया ना? अभी यहाँ पर संख्या का ज्ञान कराने के लिए भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। 1 सेर गेहूं, 3 लोग, 14 रज, अगर अगर, ठीक है। तो अभी लास्ट एक वाला का बहुवचन कैसे होगा मैम सेंटेंस हिंदी में? आएगा तब हम बताएंगे। जैसे एक चाबी का गुच्छा, आप लोग पढ़े ना, कलेक्टिव नाउन, भली बहुत सारी चाबियां हैं लेकिन एक वो गुच्छा है, इस तरीके से एक आएगा, आगे आएगा तब बताएंगे। ठीक है मैम। चलो आगे मैम, अभी मैम, आप लोग अभ्यास वाक्य मत करना, खाली पढ़ना, देखना कि मैं कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ अभ्यास वाक्य। वीसा मीन्स क्या? 20 ना? 20 20। तो इसमें क्या लिखा है? 20 से ही आदि इकारण शब्दों के रूप 60 के समान आप अभी आपके वो संख्यावाची शब्द की लिस्ट निकालो 20 वाला, उसमें 20 के साथ क्या दिया हुआ देखो। 20 के साथ 20 से ही। हाँ, तो ई 20 से ई चलाना है तो 60 की तरह चलाना पड़ेगा। ई एंडिंग है ना, तो अच्छा। उसके तरह, और आ है तो वीसा है तो इसकी 20 तरह। के लिए दोनों चलेगा, 20 के हाँ, लिए ये भी चलेगा, 20 से ही लिया तो वो चलेगा। नहीं 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 नहीं, खाली 20 के लिए नहीं, यहाँ पे देखो 19 से लेके 58 तक हाँ, वीसा की तरह चलेंगे, और जहां जहां ई वाला है, वीसई आदि, उन सब का रूप 60 की तरह चलेगा। और 60 भी पीछे ई एंडिंग है ना, वो दिया हुआ है, हाँ है। तीनों लिंगों में दिया हुआ है। वीसा तो स्त्रीलिंग है, तो सेम स्त्रीलिंग है, वीसा वीसाओ ससा की तरह, हाँ, तो ऐसे प्रयोग करना पड़ेगा। तो वीसा का रूप चला के देखो, वीसई का रूप चला के देखो, पहले तो कंठस्थ करो 1 2 3 4, फिर किसका रूप किसकी तरह चलता है वो याद करना पड़ेगा, फिर चलाने का अभ्यास करना पड़ेगा, फिर हम फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला देखेंगे, वो भी सब लिस्ट आएगी आगे। पढ़ो आप लोग, फिर सॉल्यूशन में, सॉल्विंग में जाओ। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, हाँ। यस मैम। देखो Yes, ma'am. आपके बुक में पेज नंबर 168 पर वापस एक लिस्ट है, 168 पर वापस 1 2 3 दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्रमवाची संख्या शब्द, पहला, दूसरा, तीसरा, फर्स्ट सेकंड थर्ड बोलते हैं ना, जैसे फर्स्ट लड़का और 1 लड़के में फर्क है। प्रथम। समझ में आया? तो क्रमवाची पुल्लिंग स्त्री नपुंसकलिंग है, तो पढ़म, अपन पता ना, पढ़मम अध्ययनम, पढ़मो अध्ययनो, पढ़मा अध्ययना। तो इसी प्रकार स्त्रीलिंग होगा तो पढ़मा, पुल्लिंग होगा तो पढ़म, और नपुंसकलिंग होगा आदि, पुल्लिंग नपुंसकलिंग सेम है, पढ़मिल्ल। इसी प्रकार बीय मतलब दूसरा, दो दुव्वे बे मतलब दो, बीय मतलब दूसरा, बिया मतलब दूसरी। तो इस प्रकार पहला, दूसरा, तीसरा की लिस्ट यहाँ पे 1 से लेके 100 तक दी हुई। तो पहले 1 to 100 लिस्ट पक्का करो डियर, फिर आगे आगे बताएंगे। जितना बोला जाए उतना करो। नहीं मैं सब कर लूंगी तो कर लो, रीडिंग मार लो, आप खुद प्रैक्टिस करो, इसलिए मैं वो भी बता रही हूँ, ये भी बता रही हूँ, आपको जो ठीक लगे आप करो। ये सब करने के बाद ये संख्यावाची सॉल्व करो, पेंसिल से सॉल्व करो वहीं पर, फिर अपन क्लास में डिस्कस करेंगे। ये हम नहीं सॉल्व कराएंगे, हम करेक्शंस करवाएंगे। अंडरस्टूड? अब मैंने ये संख्यावाची शब्द पर मैं क्यों चली गई, क्योंकि यहाँ पे संख्यावाची आए, तो मेरे लगे हाथ 2 काम हो गए ना साथ साथ। ओके, चलो अब संबोधन में प्रायः प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। प्रथमा वाला ही तो हम संबोधन में लाते हैं, अष्टमी विभक्ति कभी नहीं बोलना, संबोधन के लिए संबोधन ही बोलना। हे देवो, हे साहू, हे कमल, हे सब प्रथमा को यहाँ संबोधन में ले आते हैं। तो कहाँ कहाँ संबोधन मिलता है अभी बोलो मुझे फटाफट।
फटाफट बोलो कहाँ कहाँ प्रथमा मिलता है। पहले तो डिस्क्रिप्शन में जहां जहां होता है वो सब प्रथम। सूर्य उगता है, कमल खिलता है, पंछी उड़ते हैं, सब में प्रथमा। फिर कर्मवाच्य में कर्ता प्रथमा में चला जाता है। हाँ, फिर तड़ो तड़ी तड़म वाला रूप, फिर नापने का रूप, फिर संख्यावाची का ज्ञानकरण, बस यहाँ पे प्रथमा और संबोधन में प्रथमा। बराबर। इसी प्रकार द्वितीय, अब देखो कर्ता और क्रिया का समन्वय, कर्ता और क्रिया है ना, कर्ता और क्रिया का संबंध बताने के जो चिन्ह है वही तो कारक है। तो यहाँ पर अब देखो क्रिया का, अब उसी को एक्सप्लेन किया उन्होंने, वो जो ऊपर दिया ना उसी को एक्सप्लेन किया। पढ़ो आप लोग, कोई भी मैम पढ़ो। समन्वय का इंग्लिश क्या आता है? समन्वय का मतलब है कनेक्शन, कनेक्शन। है ना, क्या समन्वय है, क्या क्या कहना चाहते हो। क्रिया का पुरुष तथा वचन कर्ता के अनुसार चलता है, ये तो पहले ही बता दिया ना, कर्ता के अनुसार क्रिया का पुरुष और वचन चलता है। यदि कर्ता एक वचन बहुवचन हो तो क्रिया भी अन्य पुरुष की होगी। कर्ता मध्यम, ये सब पहले ही पढ़ा दिया आपको, खाली रीडिंग मारना है। फिर राम ध्यान करता है तो कर्ता अन्य पुरुष है, वो ही भाई समझाया गया। वाक्यों में जब दो या दो से अधिक कर्ता संज्ञा हो तो क्रिया बहुवचन की होगी। जैसे राम हरि बैठते हैं तो रामो यह हरि, दोनों को एक वचन लेना पड़ेगा, और बैठते हैं वो बहुवचन। तो कर्ता कारक और क्रिया का क्या संबंध है वो बताए, संबंध, कनेक्शन। तो इस प्रकार प्रथमा का के रूल सारे बताएंगे, ये पढ़ लेते हैं अपन, ठीक है। पढ़िए नेक्स्ट सेकंड वाला। जब अनेक संज्ञाएं अलग अलग समझी जाती है अथवा अनेक संज्ञाएं एक साथ मिलकर केवल एक विचार को प्रकट करती, जैसे क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब क्या है, कषाय है। तो इन सब में एक वचन लिया है। क्यों एक वचन लिया है? क्योंकि ये सारे एक भाव को प्रकट करते। कोहो माणो माया च लोहो संतिम नासेई, यानी शांति का नाश करते हैं। भले ये चार है लेकिन यहाँ पर एक वचन लिया ना, है ना, भले ही ये चार है इसलिए हमने नासेई में एक वचन डाला, क्योंकि यहाँ पे भाव इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? ये चारों मिलकर एक शांति का नाश करते हैं, ठीक है। इस प्रकार जब वाक्य में एक वचन का संकर्ता अथवा से जुड़ा हो, यानी राम अथवा सीता, रीटा अथवा अल्पा, सबको अगली क्लास में पढ़ाएंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या है, तो एक वचन की क्रिया आती, मैं बोल सकती हूँ रीटा अथवा अल्पा सबको पढ़ाएगा, है ना। राम अथवा सुरेश सबको पढ़ाएगा, भले ही दो लोग है बट क्रिया एक वचन की आ गई, है ना। पढ़ाएगी, रीटा अथवा अल्पा सबको पढ़ाएगी, क्लियर। तो किंतु जब कर्ता भिन्न वचनों का हो तब क्रिया निकटतम कर्ता के अनुसार चले। भिन्न वचन है, भिन्न वचन है, जैसे राजा और बहुत सारे मंत्री विचार करते हैं, तो राजा एक वचन है, मंत्री बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर निकटतम कौन है, सॉरी यहाँ पे मंत्री है ना, वो एक वचन है, मंत्री एक वचन लिया इन्होंने, तो विचार करता है। भले ही दो लोग विचार कर रहे हैं, भले दो लोग विचार कर रहे हैं, राजा अथवा मंत्री भी आ रही, एक वचन, अथवा वर्ड आ गया ना ऊपर, तो निकटतम जो, अगर मैं बोलूं राजा अथवा बहुत सारे मंत्री, तो वहां पर विचार करते हैं लिखना पड़ेगा। निकटतम कौन है क्रिया के, बहुत सारे मंत्री, तो वो मुझे इंडिकेट, भले ही राजा एक वचन है ना। जैसे मैं बोलती हूँ लड़का और बहुत सारी लड़कियां आर कमिंग, आई वॉन्ट से इज कमिंग, राजा लड़का अथवा बहुत सारी लड़कियां आर कमिंग, आई वॉन्ट से इज कमिंग, लाइक दैट, ओके। नेक्स्ट वन, ससा वा भाई वा बाल आ,
ससा यानी बहन अथवा भाई अथवा बहुत सारे बालक, तो आगच्छन्ति क्रिया प्लूरल में लिया। इसी प्रकार उत्तम मध्यम अन्य पुरुष के कर्ता हो तो क्रिया उत्तम पुरुष बहुवचन। आप पढ़ो और एग्जाम्पल से पकड़, सब मैं नहीं समझा सकती। तो इस प्रकार आप ये, जैसे सो तुमम अहम च उत्थमो, भले यहाँ पे तुम वह और मैं उठते हैं तो मो आ गया, क्योंकि लास्ट में अहम है, उठमी है। हाँ सॉरी, उठम मो आया क्योंकि वो उसमें तीनों को लेना है, तुम भी उठ रहे हो, मैं भी उठ रहा हूं, और तो निकटतम अहम है, इसलिए वहां पर उठमो लेकर के बहुवचन कर दिया। ठीक है। और जब मध्यम तथा अन्य पुरुष का कर्ता हो तो क्रिया मध्यम पुरुष की होगी, सो तुमम च उठ्ठः, यानी वह और तुम उठते हो। इसी प्रकार जब भिन्न भिन्न पुरुष के दो या दो से अधिक कर्ता अथवा से जुड़े हो तो क्रिया का पुरुष और वचन निकटतम पद के अनुसार हो। इसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, खाली रूल बड़े बड़े दिख रहे हैं, लेकिन मैं आपको अभ्यास के वाक्य कराऊंगी ना, एकदम इजी आएगा, एकदम इजी आएगा। ठीक है। सो अम्हे व कज्जम करमो, यानी वह अथवा हम सब कार्य को, जो अम्हे है ना नियरेस्ट है, इसलिए करमो। अम्हे अथवा सो, तो नियरेस्ट सो है, तो इसलिए उसके हिसाब से क्रिया कर ही आए। तो ये प्रथमा का रूल है, समझ में आया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर वाक्य देखिए, पेज नंबर 34 में, पेज नंबर 34 है ना, प्रथमा द्वितीय दोनों पढ़ने के बाद वो सारे रूल्स अप्लाई करते हुए 34 वाला सॉल्व करना है। 34 पेज नंबर वाला सॉल्व कर। समझ में आया आपको कैसे पढ़ना है? तो मैंने प्रथमा पढ़ाया, अब द्वितीय में कहां कहां द्वितीय आती है वो पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने कहा मैं 5-15 तक लूंगी। अब कर्म में द्वितीय लगती है, जैसे सेकंड सेंटेंस द्विकर्म क्रिया, द्विकर्म यानी दो कर्म है। जैसे वह गाय से दूध दूहता है, यानी गाय को भी दूधता है और दूध भी मिल रहा है, दो कर्म है वहां पर। तो वहां पर क्या करना, वहां पर क्या करना, तो यहाँ पे बताया है कि द्विकर्म क्रियाओं के योग में मुख्य रूप में द्वितीय विभक्ति होती है और गौण रूप में अपादान, अधिकरण, संप्रदान, संबंध आदि विभक्तियों के होने पर भी हमें द्वितीय विभक्ति लेनी। जैसे गाय से दूध दूहते हैं, तो मैं गाय से में गाय के द्वारा नहीं ले सकती, वहां पर भी मुझे द्वितीय ही लेना है। ठीक है, मुख्य कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है और गौण रूप में ये सारे गाविम दुग्धम, दो क्रिया है, दो गाविम तो तृतीया ही है वहां पर, गाय से पंचमी है वहां पर, तृतीया नहीं है, पंचमी है। मैं गाय से दूध को अलग कर रही हूँ, लेकिन मुझे दूध चाहिए ना, तो मुझे किसके पास जाना पड़ेगा, गाय के पास जाना, गाय को ही देखना पड़ेगा, इसलिए वहां पर गाविम दुग्धम दुहई। इसी प्रकार वृक्ष के फलों को इकट्ठा करता है, सो रुखम फलाइम चुणई, तो यहाँ पर क्या है, वृक्ष के फलों को, तो वहां पर के में षष्ठी आना चाहिए, लेकिन इन्होंने द्वितीय ले लिया। आप वहां पर वृक्ष के फल को इकट्ठा करते हैं, अगर आप वहां पे के भी डाल देंगे तो गलत नहीं है, लेकिन रूल के हिसाब से वहां द्वितीय भी आ सकता है। गुरु शिष्य के लिए धर्म का उपदेश देता है, तो मुझे शिष्य के लिए में क्या डालना चाहिए, चतुर्थी डालना चाहिए, लेकिन इन्होंने यहाँ पर द्वितीय भी डाल दिया। संप्रदान के स्थान पर द्वितीय का प्रयोग, षष्ठी के स्थान पर द्वितीय का प्रयोग, पंचमी के स्थान ऊपर फर्स्ट सेंटेंस पंचमी के स्थान पर द्वितीय का प्रयोग, संबंध षष्ठी के स्थान पर द्वितीय का प्रयोग, इसी प्रकार चतुर्थी के स्थान पर द्वितीय, ऐसा मिलता है लिटरेचर में अपने को, इसलिए रूल आचार्य ने दे दिया और यहाँ इस बुक में आ गया।
फिर अपादान, राजा से धन मांगता है, तो वहां पर राजा से में हमें नरिंदत्तो डालना चाहिए, लेकिन उन्होंने नरिंदम डाल दिया। तो प्रधान क्रिया वहां पर धनम है, गौण क्रिया, क्रिया मतलब कर्म, प्रधान कर्म धन है, गौण कर्म नरिंद है, इसलिए वहां पे द्वितीय। अग्नि से धान पकता है, तो अग्नि के द्वारा धान पकता है, तृतीया लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पे द्वितीय। क्या मैम। रूल है ना? मैम आवाज नहीं आई थोड़ी देर तक के। अरे तो मैं क्या करूं? अब आ रही है, वापस से बोल दीजिए। आपको नहीं। देखो सेकंड वाले में फर्स्ट सेंटेंस में ब्रैकेट में दिया हुआ है पंचमी, हाँ वो तो हो फिर गया। फिर षष्ठी, फिर थर्ड में दिया चतुर्थी, फिर फोर्थ में दिया हुआ पंचमी, फिर कहाँ कहाँ किस किस के बदले द्वितीय आ सकते वो बता रहे। ठीक है, पहला रूल क्या था कि जिस व्यक्ति या वस्तु पर किसी क्रिया का प्रभाव पड़ता है तो उस क्रिया का कर्म वो कर्म कहलाता है। माता कथा को सुनती है, यहाँ सुनना क्रिया का प्रभाव किस पर हो रहा है? कथा पर। कथा समाप्त होती है ना, इसलिए उस कथा को द्वितीय, वो समझाया पहले आप, जो कि मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ लास्ट ईयर। कर्ता कहाँ आता है? कर्म का। समझ में आया क्या? कैसे पढ़ना? हाँ, अब आप में से कौन है जो मुझे द्वितीय के सारे 13 रूल पढ़ करके 1 1 1 1 करके आप लोग समझाएंगे? बहुत सारे रूल्स है ना, रीडिंग मार के समझना है, डाउट हो तो क्लास में आके पूछना, हम नहीं सब पढ़ा सकते। कैसे पढ़ना ये पैटर्न मैंने आपको बताया। अब पढ़िए, चलिए। पुच्छ, रुंध, मह, मुस आदि द्विकर्मक क्रियाओं का प्रयोग भी कर लेना चाहिए। जैसे पुच्छ में पूछता है, राम राजा को पूछता है, तो क्या पूछता है? प्रश्न पूछता है। तो 2 कर्म आ गए ना, राजा भी कर्म, प्रश्न भी कर्म। इसी प्रकार रोकना, वह हवा को रोकता है। किससे रोकता है? बैलून से रोकता है। तो बैलून से में तृतीया लग रही है, लेकिन यहाँ पर हम उस तृतीया को द्वितीया में ले आएंगे। वह बैलून की हवा को रोकता है। नहीं समझ में आया? ठीक है ना? इस प्रकार मथना, तो मथने के लिए भी हमें एक दही भी चाहिए, एक मथनी भी चाहिए, 2 कर्म है ना। तो ऐसी ऐसी क्रियाओं में हमें ये द्वितीया ही लगेगी। इसी प्रकार चोरी करना, तो चोर चोरी करता है, तो चोरी कर्म है। किसकी चोरी करता है? धन की, पैसे की, सोना चांदी की। तो की आ गया वहां पर, लेकिन हमको वहां पे उसमें द्वितीया लेना। ओके, तो आप पीछे जाओगे ना, वाक्य प्रयोग वाक्य दिए हुए, कुछ सॉल्व करके दिए हुए हैं, कुछ आपको सॉल्व करने के लिए दिए हुए हैं 34 35 में। समझी गया बद्दा? समझी गया। बराबर, यहाँ पढ़ने का, यहाँ देखने का, यहाँ सॉल्व करने का, क्वेश्चन आके पूछने का, हमारा सर नहीं खाने का। हम बोलेंगे वहां दिया हुआ है, देखो जाके, बराबर सॉल्व करके ग्रुप में भेजने का, एक दूसरे को ठीक ठाक करने का। ये तेरा गलत है, ये ऐसा नहीं ऐसा होगा। फिर भी डाउट खड़ा रहे तो क्लास में लेकर आ, ग्रुप बना के, और एक साइड में ग्रुप बना के 40 मिनट्स का जूम लेके आपस में ट्यूशन करो। ट्यूशन मतलब आपस में क्लास ले, कंबाइन स्टडी करो सब लोग मिलके। वीक में 1 घंटा 2 घंटा इतना ही पढ़ा सकते हैं। अंडरस्टूड डियर? द्वितीय का रूल कैसे करोगे? अब मीनू मैम पढ़ेंगे, आपको समझाएंगे, आप लोग पढ़ोगे, आप लोग समझाओगे। कुछ भी डाउट हो तो मुझे मिस कॉल देना, मैं क्लास में आ जाऊं। क्लियर? तो आज के लिए हमने क्या किया? थोड़ा सा संख्यावाची देखा, थोड़ा सा सी जस का होमवर्क दिया, कारक का प्रारूप समझा, प्रारूप यानी स्ट्रक्चर, और प्रथमा
और द्वितीय कारक को लिया और प्रयोग वाक्य होमवर्क दिया। Understood, dear everybody? If you want, I will sit and explain Dvitiya. You try with Meenu ma'am. You try with Meenu ma'am. You have problem, you just call. I'm here on. Understood, dear? सिर्फ मेरा वीडियो ऑफ है, ऑडियो ऑन है, आप लोग करो। कुछ मुझे मेरी जरूरत पड़ेगी तो आई विल इंटरफेयर, आई विल इंटरकम। इंटरकम नहीं, क्या मेरी इंग्लिश को हो गया पता नहीं। आई विल अपीयर। ठीक है? Understood, dear? Meenu? Understood? You have any issues? Yes, You check we'll- them. और ये लोग we'll सब मास्टर लोग हैं, ये लोग अपने आप सब समझाएंगे। वही मैम साथ में कर लेंगे द्वितीय विभक्ति वाला। हाँ, तो द्वितीय विभक्ति के जितने भी रूल्स है सारे एक बार कर लेते हैं, 13 रूल्स। आपको मैंने बार बार बताया ना, गति अर्थक में द्वितीय होता है। अपन ने अनियमित में पढ़ा था, पुत्तो घरम गयो, है ना, पत्तो गय, उस अर्थ में द्वितीय आती है। कहाँ द्वितीय? देखो एक बहुत अच्छा आएगा, चौवी संपी जिनवरा, बहुत इंटरेस्टिंग। आप लोग पढ़ो, ये पढ़ोगे तो थरो होगा आपका काम। ये सब हम आपको सर्टिफिकेट कोर्स में पढ़ाएंगे तो आप लोग सब भाग जाओगे। वहां तो आपको खाली लिटरेचर पढ़ने के लायक बनाया, अब और अच्छे से लिटरेचर पढ़ने के लायक के लिए डिप्लोमा। ओके डियर? मैम ये इस पेज 31 में जो वो लाइन दिया है, पुच्छ, रुंद, मथना, चुप करना आदि द्विकर्म क्रियाओं का प्रयोग भी कर लेना चाहिए। तो जैसे मन में अगर कर लेना चाहिए, मन में कर लेना चाहिए। पर एक तो संज्ञा होगी, एक क्रिया होगी ना मैम, जैसे वह दही को मथती है या वॉट एवर। तो किससे मथती है? किससे मथती है? तो वह तो करता है, वह तो करता है, दही को मथती है। अगर मैं बोलूं वो घोटनी से दही को मथती है, तो घोटनी में आप क्या लोगे? तृतीया। वो कह रहे तृतीया मतलब वहां पे भी, उसमें भी द्वितीय लो। वो रूल है। समझ में आया? जैसे अभी ये वाक्य है ना, वह गाय से दूध दूहता है, तो गाय वो दूध दूहता है, तो किससे दूहता है? गाय से। तो गाय से में आप क्या लोगे? तृतीया लोगे या पंचमी लोगे, लेकिन वो कह रहे हैं पंचमी मत लो, द्वितीय लो। क्यों? तो जैसे अब हम समझते आ रहे हैं कि जाने के अर्थ में द्वितीय होता है, वैसे ही समझ लेना कि पूछना, रोकना, मतने के अर्थ में द्वितीय। नहीं 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 नहीं, वो रूल वहां नहीं लगे। गति अर्थक में द्वितीय होगा, वो रूल नंबर 3 है नीचे। नीचे रूल नंबर 3 है, पेज नंबर 31 पर। अच्छा, वो रूल अलग है, ये रूल अलग है। जैसे मैम गति अर्थ नहीं। बोलो मैम, वह दही को मथता है, इनडायरेक्टली में अपने को मतनी समझ जाना है। हाँ, तो लेकिन अगर मैं आपको दूं, अगर मैं आपको वाक्य दूं कि श्री बाला मथनी से दही को मथती है, हाँ, तो तो द्वितीय ही क्या आएंगे लोगे? दोनों तो भी मथनी द्वितीय में आप आएंगे। तृतीया लोगे ना, लेकिन वो हाँ, कह रहे हैं कि नहीं, वो प्रधान क्रिया कर्म नहीं है। हाँ, प्रधान कर्म है दही, ये गौण कर्म है, गौण इसलिए कर्म। उसको द्वितीया में डाल दो। हाँ, वो समझ गया। बस पर ये जो रूल है। क्रिया हो रही है उसको गौण कर्म मान लो बेसिकली। नहीं, क्रिया हो रही है नहीं, दो कर्म है ना, गाय भी कर्म है, दूध भी कर्म है। देखो सेंटेंस, दही प्रधान कर्म है, मथनी द्वितीय कर्म है। गौण कर्म है। गौण कर्म है, गौण कर्म। हाँ, मतलब गौण कर्म है। हाँ हाँ, इसलिए वहां पर मैंने द्वितीय ली। हाँ, प्रधान और मतलब गौण कर्म। सभी क्रिया के दो दो नहीं होते हैं कर्म, किसी किसी क्रिया के ही दो दो कर्म होते हैं, ऐसा? इसलिए उन्होंने वो छांट के 4 क्रिया दी। हाँ, आदि हाँ, आदि लिख दिया क्रिया उसमें। दी। अब ओके। देखो, चोर चोरी करता है, चोर चोरी को करता है, तो किसकी चोरी करता है? धन की चोरी को करता है। तो अब धन की में आप षष्ठी ले लोगे, लेकिन वहां मुझे संबंध बिठाने द्वितीय की लेना। जरूरत नहीं। मेरा धन चोरी हो गया, तो धन चला गया ना, तो वो भी द्वितीय में डालना। अंडरस्टूड? तो ऐसे ऐसे रूल्स आप लोग करो, मैं देखती हूँ। ठीक है, करो करो। समझ में नहीं आए तो बुलाओ, प्रिया मैम वेलकम, मीनू करो। अच्छा, आज अपना ये नहीं हुआ, अर्हत प्रवचन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आप लोग पढ़कर आना। 15 दिन के बाद आप लोग अर्हत प्रवचन कराओगे। पाठ गद्य पद्य में, गद्य पद्य बुक में अर्हत प्रवचन की गाथाएं हैं,
पढ़कर आइएगा, क्लास में कराइएगा। मैम नेक्स्ट वीक थर्सडे को क्लास नहीं है तो अपन फ्राइडे को रख रहे हैं या स्किप ही कर रहे हैं मैम? स्किप कर दो ना, फिर पर्यूषण आ जाएगा उसके बाद, वही फिर इसके लिए पर्यूषण की छुट्टी होगी, आपकी क्लास माइनस होगी, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगस्त चला मैम जाए। गुरुवार से पहले कर लेते हैं ना, 11 से पहले कर लेते हैं मैम। हाँ हाँ, वेडनेसडे भी वेडनेसडे को रख सकते हैं, वेडनेसडे को रख Wednesday। सकते हैं। सोरेन हाँ। से कंफर्म कर लेना। और अगर मैं नहीं आऊं तो आप लोग अरत प्रवचन आपस में कराना। आ गई तो बेस्ट है, नहीं आई तो आप लोग मिलके करो। ओके मीनू, अंडरस्टूड? वन क्लास आल्सो दे शुड नॉट मिस। वेडनेसडे रख लेते हैं ना मैम। हाँ, वेडनेसडे रख लो, सोरेन से कंफर्म कर लो, उस दिन जूम आईडी अवेलेबल होना चाहिए। और फिर मैं आपको बता रही हूँ, ये तृतीय कारक का तृतीय कारक है ना, तृतीय विभक्ति के रूल्स देखना, चतुर्थी के देखना, वो अभ्यास वाक्य को सॉल्व करना, ये सारा करने के बाद फिर आगे क्या करेंगे वो देखें। ये लेसन अपना चलेगा अप टू पेज नंबर, बड़ा लेसन है, बड़ा लेसन हाँ, बहुत बड़ा है मैम। पेज नंबर 51। मैंने बता दिया कैसे पढ़ना, आप लोग पढ़ करके 51 तक, अभी नहीं नेक्स्ट क्लास तक, द्वितीय तक पढ़कर आए। और जिसको एक्सपर्ट है वो 51 तक पढ़ो, सॉल्व करो, चैंपियन बनो। उसके बाद मैं एक क्लास ही और ये लूंगी, मैं सब नहीं पढ़ाऊंगी। मैं मोटे मोटे रूप में मीनू मैम आपको सब पढ़ा देंगे। और फिर जो है तद्धित प्रत्यय अपन चालू करेंगे। तद्धित इज नथिंग बट गुड, बेटर, बेस्ट, कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है? जी मैम। और भी बहुत सारा उसमें आएगा। फिर अव्यय, स्त्री प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय और फिर अव्यय की लिस्ट। छोटे छोटे, वो 3 लेसन छोटे छोटे हैं, वो तो जल्दी हो जाएंगे। ये कारक वाला लेसन ही थोड़ा सा बड़ा। और एग्जाम में आपको कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे जो सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है ना, ये इसमें से कोई ज्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं है। समझने के लिए लेसन बड़ा है। ये प्रयोग वाक्य ना, आपको वाक्य देंगे, अनुवाद करो, बस इसमें से वाक्य देंगे। आप ये वाक्य को करो, फिर जाके रूल देखो, रूल देखो, वाक्य समझो, बस। और कुछ आपको एग्जाम में रूल नंबर 1 बताओ, कर्ता कारक के सारे रूल्स बताओ, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आए। कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा कारक के रूल्स बताओ, संधि के रूल्स बताओ, नहीं। खाली अभ्यास, संधि का अभ्यास करना, 2-4 संधि पूछेंगे, समास पूछेंगे, 10 वाक्य पूछेंगे, बस। कौन से रूल से लगा वो भी नहीं पूछेंगे आप। समझ में आया क्या? कौन से रूल से अनुवाद हुआ वो भी नहीं पूछेंगे, सीधा सीधा अनुवाद करो, बस इतना ही पूछेंगे। तो आपको ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपको ये रूल्स नहीं मालूम और गाय से दूध दूध, आपने गाय में पंचमी डाल दी तो हम रॉन्ग कर दी, भले ही वो करेक्ट है, लेकिन आपने रूल अप्लाई नहीं किया, इसलिए हम रॉन्ग डालेंगे। अंडरस्टूड डियर? यस मैम। अंडरस्टूड? तो ज्यादा स्ट्रेस लेने का नहीं, पढ़ने का, चलते जाने का। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मैम, थैंक यू जय मैम। जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र, थैंक यू मैम। I'm here only. I'm going to listen to everybody. And if मेरी जरूरत होगी तो I will interpret. I will interfere. Yes, can we redo the द्वितीय विभक्ति ताकि पक्का हो जाए एक बार? हेलो। यस मैम। Yes, 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 ma'am. yes, ma'am. Continue from second, no, third, गत्यार्थक। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट क्लियर है सबको? Everybody else, is it clear? Can we start from the third? हाँ मैम, Yes, थर्ड ma'am. से चालू कर Solve that. दीजिए मैम। Can we just solve that one prayog vakya? Before finishing Okay, the going- 13, वो तो नियम तृतीय- नियम पढ़ेंगे तो आ जाएंगे, क्योंकि नियम थर्ड का है वो वाक्य, फर्स्ट वाक्य नियम थर्ड का है, इसलिए अपन थर्ड नियम सब कर लेते हैं, फिर करते हैं ना। नहीं हाँ। थर्ड के पहले जो पेज 34 पे दिया है ना, वो एक एग्जाम्पल। इसमें भी नियम नंबर 34 पे जो फर्स्ट वाक्य है वो रूल नंबर 3 का है, और रूल नंबर हाँ, 3 अच्छा। अभी किया नहीं अभी है। किया नहीं है। हाँ। ओके Correct. ओके।
ठीक है। अपने तो रूल, द्वितीय करना है, द्वितीय का थर्ड रूल। यस, पेज नंबर 31, नीचे लास्ट सेकेंड लाइन। सभी गत्यार्थक क्रियाओं के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। ये तो अपन ने सर्टिफिकेट कोर्स में भी देखा है, जहां जाने का अर्थ आता है वहां पे अपन द्वितीय का प्रयोग करते हैं। वहां पे सेंटेंस है वह घर जाता है, ठीक है। ही गोज टू द हाउस, तो वह घर जाता है, तो सो घरम गच्छे, यहाँ पे घर को द्वितीय लिया है। और वही प्रयोग वाक्य में भी सेंटेंस है वे जुड़े हुए नगर में गए, तो यहाँ पे वापस नगर में है हालांकि, बट यहाँ पे सप्तमी का प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि जाने के अर्थ में अपन द्वितीय का प्रयोग करते, इसलिए नगरम, यहाँ पे द्वितीय का प्रयोग हुआ है इवन इन द प्रयोग वाक्य, ठीक है। दैट इज थर्ड रूल। फोर्थ में क्या है, सप्तमी के स्थान पर कभी कभी द्वितीय विभक्ति होती है, जैसे सूर पयासो दिनम पसरई पसरे, सूर्य का प्रकाश दिन में फैलता है। तो यहाँ पे दिन में है, लेकिन सप्तमी के बदले यहाँ पे द्वितीय, यहाँ दिन्ने सप्तमी के स्थान पर दिन्नम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो कभी कभी जो है सप्तमी के केस में द्वितीय का प्रयोग होता है। फिर प्रथमा विभक्ति के स्थान पर कभी कभी द्वितीय विभक्ति होती है, जैसे 24 जिनवरा, 24 जिनवरा, यहाँ होना चाहिए 24 जिनवरा। संख्यावाची शब्द यहाँ पे नोट दिया हुआ है, संख्यावाची शब्दों के रूप के लिए देखिए प्रौढ़ प्राकृत रचना सौरभ, जो अभी मैम ने अपने को बताया इस ब्लू वाली बुक में, है ना, उसमें कौन सा पेज है, 158 to 161, हाथों हाथ देख लेते हैं अपन ताकि अपना क्लियर हो जाए। जिनवरा हालांकि प्लोरल है 1/2, पर यहाँ पे अपन ने 24 नहीं लिया है, वी हैव टेकन 24, वहां पे द्वितीय का प्रयोग हुआ है। 158 द्वितीय में अनुस्वार लग जाता है, बस वही वाली बात है, 24, वही बताया गया इन 158 161। ये और कोई प्रयोग वाक्य है क्या यहाँ पे? सेकंड थर्ड सेंटेंस, जो बड़ी विपत्ति से, पेज नंबर 34 में देखिए थर्ड सेंटेंस, जो बड़ी विपत्ति से अति पीड़ित भी दूसरे से धन की याचना नहीं करते। नियम 2 में है मैम, ये यहाँ पे नियम 5 में एक विज्जुपुरियम दिया हुआ है। नहीं, नियम 2 तो अपन का हो गया है ना, तो नियम 2 में, अच्छा, नियम 2 तो we have done already, so let's check that. ओके ओके। दूसरों से धन की याचना नहीं करते। जो बड़ी द्विकर्म क्रियाओं के योग में मुख्य कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, गौण कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। तो यहाँ पे गौण कर्म कौन सा है? दूसरे से धन की, मेरे ख्याल से याचना नहीं करते हैं, धन की याचना नहीं करते हैं, गौण यहाँ रहेंगे। पे मुख्य कर्म कौन सा है और गौण कर्म कौन सा है, पहले वो आइडेंटिफाई गरुय वसन पड़ी पेज, यहाँ बड़ी विपत्ति से अति पीड़ित भी दूसरे से ये संख्यावाचक आ गया ना मैम, दूसरे से धन की, दूसरे से याचना नहीं करते, प्रथम दूसरे से आया है, और गौण धन की, तो इसलिए अन्नम को द्वितीय विभक्ति में ले लिया है। गौण कर्म को द्वितीय विभक्ति में लिया है, और दूसरे से का वो वर्ड है वहां पे अन्न, अन्नम। बोलो अल्पा जी, रीटा जी, मतलब अन्य होगा ना, अन्य से भी, आई थिंक वही अन्य से, तो उसका प्राकृत में हो गया अन्नम न पथंती, याचना नहीं करते। तो ये गौण कर्म होने से उसमें भी द्वितीय का प्रयोग हो गया है। ठीक है, रूल नंबर, मैम अन्नम बोले तो दूसरे से है ना, तो धन की दिया ही नहीं है उन्होंने ना, धन की आएगा ना द्वितीय, अंडरस्टूड है, गौण अंडरस्टूड ना वो, करेक्ट।
फिर रूल नंबर 6 में देखिए, यदि वस क्रिया के पूर्व उव, अनु, अहि और आ में से कोई भी उपसर्ग हो तो क्रिया के आधार में द्वितीय होता है। जैसे हरि स्वर्ग में वास करता है, तो हरि स्वर्ग में, तो यहाँ पे तो अपन ने द्वितीय ले लिया है क्योंकि वस क्रिया के पूर्व उव, अनु, अहि या आ कोई भी उपसर्ग हो तो जो क्रिया के आधार में द्वितीय होती है। तो यहाँ पे उव वस इज द रूट वर्ड, बराबर। तो उन्होंने कहा है कि वस के पहले अगर प्रीफिक्स लगा है उव, अनु, अहि या आ का तो अपन द्वितीय लगाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे स्वर्ग में है हालांकि, लेकिन अपन वहां पे द्वितीय का प्रयोग करते हैं। यदि हम वस का ही प्रयोग करेंगे तो हरि सज्ञे वसई वाक्य बनेगा। यहाँ द्वितीय विभक्ति नहीं हुई। सो वस वर्ड वसई लेते हैं अपन तो स्वर्ग में सप्तमी रहेगा। अगर उव वस लेते हैं क्रिया तो स्वर्ग विल बिकम द्वितीय। इसका कोई है अगर तो अपन हाथों हाथ देख सकते हैं। वो सप्तमी वाला तो बहुत बार गया है मैम अपने को, पहले पिछले साल सप्तमी अर्थ में द्वितीय होती है। प्रयोग वाक्य में है क्या, देख रही थी। चलिए ठीक है, प्रयोग वाक्य में नहीं है मैम। नहीं, यहाँ पे भी अगर अपन वस ही लेते हैं ना तो अपन वो सप्तमी का प्रयोग करेंगे स्वर्ग में। हाँ हाँ। तो मैम वस और वस एक ही सेम मीनिंग है मतलब? मीनू हाँ, अभी प्रयोग वाक्य मत देखो मीनू, अभी हाँ, प्रयोग वाक्य जो पीछे दिए वो देखो ही मत, पहले रूल ओके पर ही कंसंट्रेट करो, ओके है ओके ना। उसमें जाओगे तो और ढूंढने में फिर लोगों को इधर उधर अटेंशन डेफिसिट हो जाएगा। ठीक है, ओके मैम। ठीक है, तो हालांकि वहां पे यहाँ पे भी सेंटेंस वही है कि हरि स्वर्ग में वास करता है, लेकिन अगर अपन जब वास वस रूट पर लेते हैं ना तो स्वर्ग में सप्तमी का ही प्रयोग होता है। बट इफ यू टेक इट एज उव वस और अनुवस जो वहां पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, देन आप स्वर्ग में द्वितीय का प्रयोग करते हैं। ओके मैम, तो ये अनुवस और ये उपवस ये सब उसी के ही पर्यायवाची है, मतलब अलग अलग वर्ड्स है? यस, 1 मिनट। Okay, coming to the next rule, rule number 7. उभ ओ यानी दोनों ओर, सव ओ यानी सब और, धी यानी धिक्कार, समय समीप, इनके साथ द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे परिजन राजा के दोनों ओर या चारों ओर बैठते हैं। तो यहाँ पे बिकॉज उभ ओ सव ओ वर्ड आता है तो यहाँ पे जो है राजा के है ना, उसमें अपन द्वितीय का प्रयोग करेंगे। बेसिकली ये सारी चीजें अपने को ध्यान में रखने के लिए है कि अगर उव वस वस के पहले अगर ये सारे वर्ड्स आए तो अपने को द्वितीय का प्रयोग करना है। उभ ओ सव ओ धी समय आदि आए तो फिर अपने को द्वितीय का प्रयोग करना है। तो वैसे ही यहाँ पे परिजन राजा के चारों ओर बैठते हैं तो यहाँ पे राजा के में यू विल अप्लाई द्वितीय। अंतरेन बिना और अंतरा बीच में, मध्य में के योग में द्वितीय होती है। तो के बिना वाला तो अपन ने पहले सर्टिफिकेट कोर्स में देखा है कि के बिना के साथ में अपन तृतीया का प्रयोग करते हैं, है ना। ज्ञान के बिना सुख नहीं है, तो वहां पे तृतीया का अपन ने देखा है। यहाँ पे कह रहे हैं कि बिना में और अंतरा बीच में या मध्य में, इन दोनों के कॉन्टेक्स्ट में द्वितीय का प्रयोग होता है। तो ज्ञान के बिना में ज्ञान विल बी द्वितीय। नानम, why have they taken अंतरेन over here? ज्ञान के बिना सुहम नथी। यहाँ पे अंतरेन क्यों आया है?
बिना के लिए आया है ना मैम, वो अंतरेण ना। नहीं, अंतरेण तो अंतरा बीच में मध्य में के लिए है ना। यहाँ पे अंतरेण कॉमा एक ब्रैकेट में बिना भी दिया हुआ है मैम। अंतरेण मतलब बिना, और अंतरा बोलता बीच में मध्य में, हाँ, ओके। दोनों के योग में द्वितीया अच्छा, होती है। बिना के लिए अंतरेण आ गया, ज्ञान को द्वितीया में ले लिया है। ठीक है, सो बिना के लिए इट इज अंतरेण, और जो नानम शब्द है उसमें द्वितीया का प्रयोग हो गया है। नानम अंतरेण न सुहम। इसको अपने सर्टिफिकेट कोर्स में कैसे किया? ज्ञान के बिना सुख नहीं है। अपन तृतीया लिए थे ना, नाने न, नानेन सुहम नथी। नाने न नहीं, के साथ, के बिना वो एक वर्ड था बिना के लिए, वो भी लगाए थे शायद उसके साथ में, नाने न और एक और वर्ड लगाए थे क्या, जैसे नाने न सम्मम, नाने न ज्ञान के साथ के लिए सम्मम कुछ लगाए थे, याद है जैसा, याद नहीं मैम पूरा, पर बिना के लिए भी एक वर्ड था जैसा अव्यय कुछ, ज्ञान के बिना, याद नहीं आ रहा मैम। नानेन विना सुहम नथी। हाँ बिना, हाँ करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ, अपने को लगाना है द्वितीया का प्रयोग कर दिया, नानेन एकम नानम। गंगा और यमुना के बीच में प्रयाग है, तो ये जो गंगा और यमुना है इन दोनों में लग जाएगा द्वितीया। बीच में के लिए आगे अंतरा, प्रयाग है यानी पयागो अथी। ये सिंपल सेंटेंस हो गया, पयागो प्रयाग है। फिर कहा गंगा और यमुना के बीच में, तो जहां पे बीच का अर्थ होता है, कॉन्टेक्स्ट होता है, या बिना का कॉन्टेक्स्ट होता है, वहां पे आपको द्वितीया का प्रयोग करना है। हियर नेक्स्ट, इन द 9th रूल, पड़ी यानी की और या की तरफ के योग में द्वितीया होता है, द्वितीया होती है। तो माता की ओर तुम स्नेह रखते हो, तो जिसकी और या जिसकी तरफ की बात हो रही है उसमें अपन को द्वितीया लगाना है। तो यहाँ पे माता विल बी मायम। मायम, और फिर की और के लिए जैसे वहां पे अपने 8th वाले में देखा कि बिना के लिए अंतरेण शब्द है, वैसे ही यहाँ पे की और के लिए पड़ी शब्द है। तो मायम पड़ी, तुम स्नेह रखते हो, तो अपना नॉर्मल सेंटेंस हो गया है ना। तुम हम स्नेह को, तो अगेन इट इज गोइंग टू बी स्नेहम, एंड रखते हो इज करसी करसे या करते हो। फिर 10th, यस, एनीबॉडी सेइंग एनीथिंग? नो मैम। ओके, 10th रूल है, समय एवं मार्गवाची शब्दों में द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे वो 5 दिन तक खेत सींचता रहा, तो टाइम लिमिट बता रहा है ना अपने को, कितने दिन तक उन्होंने खेत सींचा, 5 दिन तक। तो यहाँ पे सो पंच दिनानी दिनाइम आदि खेतम सिंचीय, सींचता रहा, पास्ट टेंस है। सो को वह कोस भर चलता है, तो कितना चल रहा है, कोस भर, तो वो हो गया द्वितीया विभक्ति। यहाँ पे द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यहाँ पंच दिनानी द्वितीया विभक्ति में रखा गया है, और कोसम भी द्वितीया विभक्ति में है। यह प्रयोग उस समय होता है जब निरंतरता हो, समाप्ति नहीं। एंड की बात नहीं कर रहे हैं, 5 दिन तक, तो निरंतरता की बात हो रही है ना, कंटिन्यूटी की। तो 5 दिन तक वह खेत सींचता रहा या कोस भर चलता रहा, तो यहाँ पे कोसम और पंच दिनानी, यहाँ पे दोनों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट 11th रूल है, दूर व अंत्य समीप तथा इनके समानार्थक शब्द द्वितीय विभक्ति में रखे जाते हैं। गांव से दूर नदी है, तो यहाँ पे ये जो दूर शब्द है उसको द्वितीया में रखा है। नदी है नई अथी, गांव से दूर नदी है, तो यहाँ पे दूर को द्वितीय विभक्ति में रखा है। वैसे ही नदी के समीप यति बसता है, तो समीप के लिए ऊपर वर्ड आपको दिया है अंतीय, सो द्वितीय में इट विल बिकम अंतियम। तो समीप और दूर, उसके लिए भी अपन को द्वितीय विभक्ति का प्रयोग
करना है। विना के योग में द्वितीया होती है, जैसे माता के बिना शिक्षा नहीं होती है। तो विना के योग में माता यहाँ पे जो है उसमें अपन द्वितीया का प्रयोग करेंगे। मायम विना शिक्षा नहीं होती है, तो शिक्षा न होई या होदी। तो विना के योग में हो गया द्वितीया। और लास्ट रूल है, कभी कभी संज्ञा शब्द की द्वितीय विभक्ति का एक वचन यानी जो 2/1 है क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे वह सुख पूर्वक रमन करता है। रमन करता है के लिए है विहरई, और ये सुख पूर्वक जो है वो आके अपने को द्वितीय विभक्ति का प्रयोग वहां पे होगा। सो सुहम विहरई। ये हो गए अपने 13 रूल्स ऑफ द्वितीय विभक्ति। Ma'am, sorry, this words like antara, anantarena, veena, वो सब पढ़ी, वो सब अव्यय में आता है, or it's just words like that? No, they are not aware. Not अव्यय, they are not अव्यय. Okay, okay. मैम मनीषा जैन, ये जी। 11th रूल में सब डिविजन 2 में जो सरी आ है, ये इसका क्या होगा? अपना 6/1 है क्या ये? नदी के समीप यति बसता है, तो यति बसता है अपना सिंपल सेंटेंस हो गया। यति इज कर्ता, बसता है इज द क्रिया। समीप में अपन को लगेगा 2/1। नदी के समीप शुड बी 6/1 षष्ठी, आई थिंक षष्ठी। देखिए इसका, अच्छा आई, ये तो सभी में आता ही है वैसे। कौन सा सेंटेंस है? पेज नंबर 33, 11th रूल का सब डिविजन 2। नदी के समीप यदि बसता है। मेरे ख्याल से 6/1 रहेगा षष्ठी ओनली, क्योंकि उसके साथ उसका संबंध बता रहा है ना, नदी के समीप। इट इज षष्ठी। ओके मैम। और मैम एक और है, ये जो 7th पॉइंट है, अभी ओ दोनों ओर से, तो अगर हम इसको कौन सा? Which one? 7th या हाँ, राजा को सभी ओर से, ऐसा कुछ है। तो अगर हम ये रूल अप्लाई नहीं करते हैं तो कैसे इसको नॉर्मल लेते हैं? नहीं तो अपना सर्टिफिकेट कोर्स के हिसाब से आप ट्रांसलेशन पूछ रहे हो? हाँ, पूछ रही हूँ। हाँ, ओके। परिजन राजा के दोनों ओर बैठते हैं। चलिए बोलिए, इसमें सिंपल सेंटेंस क्या है? परिजन बैठते हैं। परिजन बैठते हैं। ओके, सो परिजनो चिट्टई। अभी राजा के दोनों ओर, अगेन इट विल बी राजा के पास बैठते हैं ना। परिजन राजा के दोनों ओर बैठते हैं। परिजन इज द कर्ता, 1/2 बैठते हैं इज द क्रिया। राजा के षष्ठी आएगा ना? आई थिंक मैम दोनों ओर के लिए तो उभव वर्ड ही जाएगा, और राजा का कनेक्शन उभव से, तो उस राजा का तो षष्ठी आ जाएगा, पर ये उभव दोनों के लिए तो उभव वर्ड ही जाएगा ना मैम। दोनों ओर से एक ही वर्ड जाएगा ना। राजा का क्या रहेगा? राजा का तो षष्ठी रहेगा ना। षष्ठी रहेगा, पर दोनों ओर के राइनो, हैं? राइनो नहीं, राजा में तो षष्ठी लगा दिया, बट फिर आगे जो दोनों ओर है, षष्ठी में तो संबंध बताना पड़ेगा ना। हाँ, तो ये अभव, ये संज्ञा मानेंगे क्या उसको? कि अव्यय मानेंगे।
We'll have to ask ma'am. मैम है ना वहाँ पे मैम? मैम कौन बोल रहा है? रिया मैम। हाँ बोलो बोलो पेज मैं 32, पेज बोलो 32 में बोलो। 7th, हाँ पेज 32 में 7th, हाँ तो उसमें अगर सादा सेंटेंस लिखेंगे तो क्या आएगा? परिजनों, राइनों, कहाँ पर है उभो, परिजन? मैम उभो, रूल मैम वहाँ पे सेंटेंस है परिजन राजा के दोनों ओर बैठते हैं। तो अगर अभी डिप्लोमा नहीं किया अपने को सर्टिफिकेट कोर्स के हिसाब से अपने को इसको मुझे सॉल्व सेंटेंस करना नंबर बोलो, मुझे सेंटेंस नंबर बोलो। 7th, 7th। सेवेंथ में- रूल पेज 32। अच्छा ठीक है। परिजन राजा के दोनों ओर चारों ओर बैठते हैं। हम्म, तो परिजनों रायम उभौ सवौ चिट्ठई। अभी आपका प्रॉब्लम क्या है? द्वितीय नहीं लगाए बिना करना तो कैसे करेंगे मैम? वो षष्ठी आएंगी क्या राजा के साथ? नहीं नहीं, आपको सुनना है कि जब देखो रूल को ऐसे पकड़ना है कि जब भी ऐसे वर्ड आ जाए, उभौ, उभौ मतलब दोनों साइड, सवौ मतलब सभी साइड, समया यानी नजदीक, ये वर्ड्स अगर आ जाए तो वहां पर क्या करना, किसके नजदीक बैठ रहे हैं, उस द्वितीय। वर्ड में द्वितीय लेना। समझ में आया? नहीं मैम, मैम, सब लोगों को इससे- डाउट ऐसा हो रहा है कि ये समझो अपन सर्टिफिकेट कोर्स में पढ़ रहे हैं और अपने को ये द्वितीय नहीं लेते तो अपन कैसे सेंटेंस बनाते, ऐसा डाउट कर रहे हैं। बिना ये रूल के हम कैसे नॉर्मल सेंटेंस बनाते आपको हैं? नहीं, इसका आपको नॉर्मल सेंटेंस नहीं बनाना है। नहीं बनाना। रूल है कि ओके ऐसे वर्ड्स को ऐसे ही बनाना है। बनाना। ऐसे सेंटेंसेस हमने आपको सर्टिफिकेट कोर्स में पढ़ाया ही नहीं है। ओके ओके। हर बार उसको आप इससे नहीं तो समझ में आया? अभी Yes, ma'am. और ये वर्ड है तो राजा के दोनों ओर, वो कोई बनेगा ही नहीं, सेंटेंस बनेगा ही नहीं, यही बनेगा जो यहाँ बनाया हुआ है। अंडरस्टूड डियर? रूल ma'am. है उभौ, सवौ, फिर क्या बोले, वर्ड्स में जिसके लिए वो आया है उस वर्ड में द्वितीय ही लेना। हमने सर्टिफिकेट कोर्स में आपको ऐसे वाक्य पढ़ाए ही नहीं, बनेगा ही नहीं। ओके मैम। ठीक है? यस रूल मैम। को समझो। और कोई डाउट? हाँ कुछ मैम, क्लियर नहीं है तो पूछो। वही मैम 11 नंबर में 11th रूल देखिए, उसमें सब डिविजन 2 सरी आ का बट्टा क्या है? तो वहां पर तो नदी में तो के में तो आपको षष्ठी है, षष्ठी है। यस है ना? वहां तो षष्ठी है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन ये समीप में आप क्या लोगे? नदी वही के समीप यति बसता है, समीप वर्ड आ गया, दूर वर्ड आ गया, है ना? ऐसे वर्ड में आपको द्वितीय लेना है। आप नदी के समीप में सप्तमी मत ले लेना। तो ये वर्ड्स को याद कर लो, उभौ, सवौ, गति अर्थक, फिर समीप, फिर समय मार्गवाची, फिर उपसर्ग आए तो इन रूल्स में द्वितीय होती है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान में करनी। प्रथमा में कर्म में द्वितीय होती है, द्विकर्मक में द्वितीय होती है। बस इतना सा आपको ध्यान करना, बस और कुछ नहीं करना। अब आपके कुछ प्रयोग वाक्य सॉल्व करके दिए हुए हैं, वो सॉल्व किए हुए ना, वो आप पढ़ो। और कुछ अभ्यास वाक्य दिए हुए 22, उनको गृह कार्य के रूप में करके लेकर आओ। और हो सके तो ब्रैकेट में लिखो कौन से रूल यहाँ पर अप्लाई हुआ है, प्रथमा का कौन सा रूल, द्वितीय का कौन सा रूल। बस 22 सेंटेंसेस आपको करना है। गॉट इट डियर? यस मैम। क्लास इज ओवर। मैम क्लास इज ओवर। मैम यू टू मीनू मैम। हाँ मीनू बोलो। नहीं मैम, थोड़ा स्टोरी का ग्रामर किया हुआ है, वो थोड़ा डाउट है, आज पूछिए अगली क्लास में।
आज मेरा उपवास है ना, तो आप मीनू मैम अच्छा को ठीक पूछ है, लो। ओके मैम, ओके ठीक। ठीक है। Meenu, I'll make you the host and I will leave the class. मैम जय जिनेंद्र मैम। हाँ, जय जिनेंद्र। आपको जय पता जिनेंद्र चल गया ना, ज्यादा टेंशन नहीं Thank लेने you, का है। ma'am. रूल पढ़ना है और सॉल्व करना है। आइडेंटिफाई द रूल, बस। आपको एग्जाम में आइडेंटिफिकेशन नहीं पूछेंगे, बट आपके दिमाग में आप आइडेंटिफाई करोगे तो वो वाक्य का एग्जाम में करेक्ट ट्रांसलेशन करोगे, नहीं तो आप सर्टिफिकेट वाला ले आओगे तो। इसलिए वो नहीं चाहिए। रूल लगाते हुए आपको समझ के करना है, एग्जाम में रूल आइडेंटिफाई नहीं करना। और आपको है ना ये सब कंटाल लग रहा है, संख्यावाची कंटाल लग रहा है, छोड़ दो। 10 मार्क्स गए तो गए। 10 मार्क्स के बुक्स है, एक एक लेसन, सब ऐसे ग्रामर 10 मार्क्स है ना। तो बस 10 मार्क्स छोड़ दो, बाकी तो पढ़ो, भाग मत जाना। नहीं भागते मैम। Okay, bye. Huh? Who all Bye. are absent today? Ratan is absent. Priya has come. Soren is absent. Okay, they will take care of themselves. And you help them, okay? Bye. Jai Jai. Bye. जय थैंक जिनेंद्र। यू। कैन एनी मैम, ये अपना पेपर का पूरा पोर्शन और सब कौन सी बुक में दिया हुआ है? कौन से पेपर कितने मार्क्स का है और सब जो ब्लू फर्स्ट बुक क्लास है ना, उसमें दिया। ब्लू बुक में दिया? हाँ, अपभ्रंश साहित्य अकादमी द्वारा संचालित प्राकृत अपभ्रंश पाठ्यक्रम, उसमें दिया हुआ है ना। एक पतली बुक है। किसी के पास है रेडीमेड तो सामने बता दीजिए स्क्रीन में, उनको इजी हो जाएगा। जो लाइट ब्लू बुक है वो? सी श्रीबाला आंटी is showing अपभ्रंश साहित्य अकादमी द्वारा, yes, the thin book. बट वी डोंट हैव दिस बुक आई थिंक। अगर नहीं है आपके Yeah, we पास don't तो have. फर्स्ट क्लास है ना, डिप्लोमा कोर्स का अपना जो फर्स्ट क्लास है, उसमें उन्होंने पूरे अच्छे से बताया कि कौन से बुक में से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं, कौन सा बुक इज पार्ट ऑफ विच पेपर। यू हैव 4 पेपर्स इन योर एग्जाम्स, so which book is a part of which paper and how many marks will be asked out of it, she has explained it in the class. इफ श्रीबाला आंटी कैन जस्ट पोस्ट द पिक्चर्स, तो वो हमारे पास राइटिंग में रहेगा, अगर वो पेज का फोटो वो डाल देंगे तो। श्रीबाला आंटी, आप उस पेपर का फोटो भेज दीजिएगा जहाँ पे लिखा हुआ है ना वो मार्क्स का। शिबाला आंटी, वो पेपर का फोटोज आप डाल देंगे क्या ग्रुप पे? तो रिटन रहेगा हमारे पास हमेशा के वो रिकॉर्ड के लिए। शिबाला आंटी है? यस यस, मैं डाल दूंगी। ओके, थैंक यू। चलिए अभी क्या करना है? Is it too much for the day? मैम, इट्स ऑलरेडी 6 में 5:55 हो गया है। आई थिंक वी शुड स्टॉप हियर। मैम अब स्टॉप करना पड़ेगा, रात की सब सो गए हैं ना। Class is over. ओके, Those of you who थैंक want यू। to leave can leave. जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र मैम, थैंक यू। जय जिनेंद्र मैम। श्रीबाला आंटी, कुछ डाउट था आपको? अच्छा, शी इज लेफ्ट। वाला लेफ्ट। ओके ओके।